Dog is the only animal on the planet we don't ask for consent. राह चलते कुत्ता, ओए बेबी। अब लोग रेप्टाइल्स भी रखते हैं। मैं कल बोलूँ ये तो सांप ही तो है। कान की यहाँ पे नीचे तुम रोटेट करो, दे विल रिलैक्स। प्लेट से मत खिलाओ, अल्टीमेटम दे देता हूँ। आपने 3 साल 4 साल काट दिए डॉग के, मेरे को कॉल मत करना, वेट के पास जाके भागना। Hello guys, welcome back to the Priyam Show, a show where you learn business and personal growth. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, I am the founder of Paws India, a premium brand of pet products. And today we have Akash Shukla with us, India's top canine behaviorist, a creator and a guide to lakhs of pet parents. Hello Akash, we're so glad to have you on the show. Thank you, Priyam, for having me here. We've been trying for a very long time actually to have you on the show, but you've been really busy. So Akash, you and I, we work in the same field, which is dogs and cats, right? And pets are a huge part of our life right now and our community. Let's start with how did you actually figure out that becoming a canine behaviorist is actually a profession and something that you can do for your life and something that will make you money. So tell me a little bit about how you actually started and got into this profession. So actually, all of this started almost 13 and a half years back. And back then, I never even thought that this is going to turn into a profession. Yeah. Dog mantra is going to happen. It was just that I had rescued a puppy. Okay. An indie puppy, Sweetie naam tha uska. And she would not step out of the house because she had a trauma. वो एक्सीडेंट हुआ था तो पैर पे लगा तो थोड़ा सा Started पॉज getting हो जाता scared. बट शी गॉट सुपर स्कैर्ड Yeah. so then I tried a couple of trainers back then which we knew and it didn't work out and both were two extremes. एक only positive technique था जहाँ पे we couldn't understand certain aspects and she was not willing to take food, so there was no going beyond the food because there was no drive. And other one was like ये पीछे से डंडे से थोड़ा थोड़ा उसको just to give her a little The old school jerk. way. The too old school, the too modernized way. Yeah. I was not able to find the balance. Okay. And then we were told नहीं आपका तो individual building है उस ऊपर आपके terrace पे agility वगैरह बनाते ये करते वो करते and then we were told put her on Prozac when she would be too stressed or something. We were like यार अभी तो 6 महीने की बच्ची है वो उसको दवाई अभी से खिलाने शुरू कर दे. There's a long life. That took stuff that calming medicines. Calming medicines and legit antidepressants. Yeah, Not yeah. even something like Yeah, yeah. ashwagandha या वैसा Yeah, yeah. आयुर्वेदिक नहीं. Yeah. So that didn't work out and I think sometimes this universe happens. I was not looking for it. I was at my cousin's place and we were just scrolling through videos of most aggressive breeds क्योंकि तभी शौक था डॉग के ब्रीड स्टडी करो क्या क्या है क्या चल रहा है. तो every YouTube video used to talk about top 10, top 5 and one video came across me which was back then Cesar Millan was quite in the trend also in both sides, controversy on both sides but Yeah. there was most aggressive breed का एक segment था उनके तभी के शो का and we were like again हाँ इसमें भी 3 dogs दिखाए इनके बारे में बोलेगा लास्ट में बोलेगा कौन है टॉप पे and we were like as usual Pitbull is gonna be Pitbull, number 1. Rottweiler, yeah. Because there was a German Shepherd, there was a Rottweiler, there was a Pitbull. ये 3 cases उन्होंने दिखाए थे. And at the end, this guy just comes out and everyone is talking about we have to train the dog, we have to train the dog, we have to train the dog. Yeah. This man just steps out and he says there is no dog who is aggressive, no breed is aggressive and the human needs training. That's when the whole idea of, what we need to work as people, how we need to understand their minds. Then I came across, कि पैक कैसे वर्क करता है, पैक ड्राइव कैसे वर्क करता है. 1 साल मैंने पूरा रिसर्च में डाल दिया एंड देन आई गॉट माई अदर डॉग उसके बेसिस पे एंड आई सिलेक्टेड हिम फॉर द पर्सनैलिटी दैट आई वांटेड अलॉन्ग विथ स्वीटी. तो देन दे जेल्ड वेल. उसके साथ मैंने आगे के 6 महीने बिताए एंड विद इन 1 year and half शी स्टार्टेड स्टेपिंग आउट. Now our community being a small community, right? बाहर लेके जाओ तो you can imagine this fellow and there is this tiny. She was a small sized indie, तो वो ऐसे रेंगती थी तो ऐसे लगेगा कि मतलब टॉर्चर हो रहा है. And then all of a sudden she's walking with another dog and back then what I used to do is उसका लीश मेरे लैब जो लकी उसका नाम था उसके गले पे लगा देता था. Okay. She was very sensitive. Yeah, तो yeah. साउंड से मेन रोड ही है साइड में वॉकिंग ट्रैक है बट रिस्क था बट ही वुड वॉक. तो उसके लगा दिया और मैं चल रहा हूँ ये मेरे साथ चल रहे दोनों. तो पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग हाउ डिड यू डू इट व्हाट डिड यू डू क्या किया. तो वहाँ पे सबका कॉमन इशू तो वही रहता है वॉकिंग योर डॉग. दैट्स वेयर आई यूज्ड टू जस्ट हेल्प देम आउट एंड आई वाज लाइक अच्छा समथिंग फन. देन आई हैड माय समर ब्रेक. स्कूल ख़त्म हुआ था आई थिंक तभी एंड कॉलेज के पहले वाले ब्रेक में started helping out NGOs
एक स्टेप आगे बढ़ते गया. It was back in the mind कि I need to do something about it. But because back then pet industry was not such a big boom. Yeah. अभी भी behavior is not a regulated industry in India. We are trying, we are pushing hard कि कुछ उसके बारे में भी हो अभी फिलहाल के situation में. But slowly, gradually, I formed a brand नहीं बोलूँगा, but एक page on Facebook called Aggressive Dogs. And I started taking cases, pro bono aggressive लेता था. dogs. हाँ, aggressive dogs ले लिया क्योंकि NGOs से मैंने बहुत experience gain किया वो 2 साल में. Then college happened, did my management. Corporate का मेरा placement हो गया था management training program में and lockdown लग गया. Oh, wow. So I had like approximately eight odd years ka experience. Plus I had a lot of content. So my nani was also stuck with us in the house. पहले 2-3 महीने क्या थे हमें Netflix and chill. Yeah, yeah. She was like you're whiling away your time. क्या कर रहा है? बैठ के वो dogs का जो करता था उसका कुछ डाल Instagram पे because that time TikTok भी ban किया था. Yeah, and Instagram was so And like, Instagram trending. was it was trending. And I started creating content through that. उस पे videos डालना शुरू कर दिया. थोड़ा वापस से local इसमें I started coming into the limelight. नाम change किया because I was advised कि aggressive dogs थोड़ा सा It's a negative. negative हो जाता है Yeah. तो find another name. तो वो करके again by then also I didn't give any thought कि I would make it into a full-time profession. But then it picked up. I started taking online cases because the need was there. People wanted, and because of my experience and the whole idea of human training, the online sessions worked. Even today, we give sessions pan India and across the globe also. So वहाँ से फिर शुरुआत हो गई and I think within a year 2021 में I decided that You now wanna I'm take going this to up full time. then I'm going to take it up full time and then we got hardcore into the content creation game and the sessions and seminars, workshops and then rest is going on. Glad to know this. I'll tell you how I found about you. Okay, very very interesting actually. I was just scrolling midnight on my phone and I got a reel of yours. I got a reel of yours where you were taming down a very aggressive dog. I think you remember a reel wherein एक white color का dog था जो indie था शायद and she looked very calm and very like very nice like a very well behaved dog. But the minute you would go to touch the dog, she would just snap or like वो bite. bed and- से उठ के, Yeah, हाँ, yeah. हाँ, हाँ. So मेरे को वो reel आया and I was like कि aggressive dogs has become such a problem right now, right? And it's I mean because I'm a part of this industry, I know how negatively it impacts. It impacts the whole ecosystem. It impacts us, it impacts the breeders, it impacts the pet stores, and it impacts everybody, the pet parents, the society, and wherever this is happening. So when I looked at that reel of yours, I was like, this is definitely something that people need to know. कि अगर कोई dog aggressive है or there is any kind of problem, either it's aggression or any other problem or trauma basically, it has to be dealt with in a very different way, not just with a stick or not just by a lot of trainers also come into the picture and all they do is give physical activity to the dog, if I may say so. Just walking your dog 2 times a day does not keep him mentally very free. The dog needs to be engaging with another person or with another dog for him to be mentally very very active. So when I got that reel of yours, I checked out the whole page and I was like, okay, this is some fabulous work and this is some fabulous content creation. So let's talk about the content creation bit of this, right? You're one of the first, I think, influencers in the whole dog behavior that space. I have not seen anybody else make such beautiful content. So how did you start this and how did this actually come up in your mind? So I had 2 passions in life. And दोनों चीजें थोड़ा सा art related थी, मतलब I would Creative. rather creative Yeah. rather I would use the word. Yeah. So even this what we are doing has a lot of creativity going into it because we work a lot on the energy aspect, we work a lot on the psychology aspect, and psychology by definition also is an art and science. Correct. So that aspect was always there. Apart from that, I was into theater. Oh, Back then. okay. Yeah. So you basically clubbed your two. I clubbed the two and I started making content. Obviously, earlier we never used to do, skit type format videos, right? yeah. Earlier it was more of information and more of Information. session oriented videos. Yeah. But then obviously, dhire dhire I started seeing the scope over there, and I just wanted to explore this area as well. People started liking it, they started loving it. In fact, so then we thought, why not pair entertainment and value and give it out to people? So even today we
put out the session videos, and I would take pride in saying this, that we have the most transparent account. Like मैं sessions में भी जाता हूँ तो उसके बाद आपको 10-12 stories दिखेंगे sessions के कि अंदर क्या चल रहा था. Got it, Right? So we try to keep as much clarity, as much transparency with people as possible, and at the same time, the videos that we started making were more of entertainment. Yeah. But उसके साथ एक message जा रहा है. Yeah, you get to Yes. understand what we exactly get to you're understand, trying to say. and then it's coming from a professional who's into the field, so we are able to narrate out stories from dog POV, not Yeah. just the La La Land stories that sometimes people tend to Yeah, create, yeah, I get but it. something which has real meaning to it. Got it, So ऐसे ही got club करके शुरुआत हुई. Fabulous. So another thing that comes up to my mind just speaking to you about your very famous reels that go viral, I think most of the time, is how you tame an aggressive dog. So just for our audience that's listening, I'm sure all of us have walked down a street and have had a dog chasing us or have had a dog barking at us, right? If you are one of them, please comment below. So in situations wherein you encounter a dog that is not in a great mood or probably growling at you or trying to kind of attack you or trying to come close to you or trying to scare you away, आप जो भी बोलो उसको, in a layman's language, जब एक dog आप पे भौंकता है और जब आपको डर लगता है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? So इसमें सबसे common चीज़ जो हमें करनी है वो है ignore. मतलब legit you need to ignore, and there is a guru mantra for that as well. No touch, no talk, no eye contact. This is something that we do in schools. स्कूल में ये गुरु मंत्र हम लेके जाते हैं और बच्चों को बताते हैं, बच्चों को रिपीट कराते हैं. Yeah. When we do bite prevention sessions, for Okay. community dogs and pet Yeah, dogs yeah. as well. So we obviously do some good touch, bad touch वाला aspect over there कि जिससे आप bite से बच सको. But in the situation which you mentioned कि अगर dog सामने से confront करता है, भौंकता है या कुछ करता है, the best policy is not to first look in the eyes. एक टाइम आप चिल्ला दो, ठीक है, but देखना मत आंखों में और भागना तो बिल्कुल भी मत. I know it sounds a little counterintuitive because your intuition would make you put you into fight or flight. Yeah. But what happens at that time is you need to have इसीलिए awareness important है. See, when you're self-aware about something, your subconscious automatically makes you do that. Got it. और at least डर गए ना तो आपका रिफ्लेक्स होने के बाद आप वापस वहीं खड़े हो जाओगे कि नहीं सुना था, भागेंगे तो और भगाएगा. करेक्ट. एंड देयर इज वन एस्पेक्ट व्हिच वी से कि अगर कन्फ्रंटेशन मूड है डॉग का एंड डॉग आपके ऊपर चढ़ने ही आ रहा है तो यू हैव टू पुट समथिंग बिटवीन यू एंड द डॉग. समथिंग यू हैव टू ब्लॉक विद. तो अगर कुछ भी नहीं है, मतलब in worst scenario, I have told this to Your kids. bare hands. Your bare hands obviously, but for kids we generally say कि हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ सब जगह पार्क्ड होती है, गाड़ी के ऊपर चढ़ के That's like worst scenario. You're like legit getting attacked. Okay. Because there is a definition of aggression. Most of 95% जो भी होता है वो chasing होता है. ऐसा bite बहुत रेयर सिनेरियो में होता है जहाँ पे लिटरली पूरा अटैक होगा. वो भी उस एस्केलेशन पे जाता है तब जब सामने वाला एकदम डर जाता है या जमीन पे गिर जाता है. When you see, like you must have seen videos, right, where it's exaggerated. Just falling on the road. Yeah, and then dogs are all over the person. Yeah. उसमें मॉलिंग एक्चुअली नहीं होता, but bites होते हैं ना, because they try to hold or वो grab. प्रे ड्राइव में चले जाता है फिर एनिमल, प्योर एनिमल इंस्टिंक्ट में चले जाता है फिर. Got it. I'll tell you a very, I mean, it might sound funny right now, but जब मैं छोटी थी ये बहुत ही डरावना था. In my lane where I used to live, okay, ट्यूशन से आते टाइम पता नहीं कैसे एक ब्राउन कलर का डॉग होता था गली में जिसको मैं देखती भी नहीं थी. आई वुड जस्ट वॉक स्ट्रेट, बट वो मेरे पे भौंकता ही था. वो कहीं ना कहीं से निकल के आएगा एंड देन ही विल स्टार्ट बार्किंग एट मी. आई स्टार्टेड गेटिंग सो स्कैर्ड दैट आई स्टार्टेड जंपिंग on like a building's railing and then going to my house. So this used to happen when I was a kid. एंड ये होने के बाद आई रिमेंबर ये तो होता ही रहता था. एंड देन एक टाइम बारिश आई. बारिश में वो डॉग मेरी बिल्डिंग के स्टेयर्स पे ही जाके बैठ गया. एंड मी बीइंग स्कैर्ड ऑफ डॉग्स एंड मी बीइंग अ किड, आई ट्राई टू एंटर द बिल्डिंग एंड आई लुक्ड एट द डॉग एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आज तो घर ही नहीं जा सकते. नो फोन, नथिंग. आई एम अ स्कूल किड, राइट? You won't believe, but I have sat outside my building for 3 hours for the dog to leave actually. Oh my god. और वो भी निकला नहीं. वो कोई अंकल आंटी आ रहे थे ऊपर, तो आई वाज लाइक प्लीज मेरे को ऊपर तक लेके चलो. दैट डॉग इज सिटिंग देयर. सो आर देयर केसेस वेयर इन ह्यूमन्स हैव नॉट डन एनीथिंग एंड द डॉग स्टिल अटैक? ये बहुत ही मतलब ऑनलाइन ये बहुत ही फैला हुआ है. देयर आर सम पीपल से कि डॉग्स डू दिस एंड वो लोग काट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. एंड पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी ऑलवेज
counter to the dog side and say that कि आप कुछ नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा. आपने आई एम श्योर आपने सुना होगा. सो यू टेल मी व्हाट इज बिकॉज मैंने खुद डील किया हुआ है इस चीज के साथ. व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग, नॉट इवन लुक्ड एट द डॉग, आई एम ट्राइंग टू इग्नोर, मैं छुप छुप के जाने की कोशिश कर रही हूँ, बट द डॉग स्पॉट्स मी एंड ही स्टार्ट्स बार्किंग. करेक्ट. सो यहाँ पे ना दो चीज़ें मैं थोड़ा दोनों को अलग अलग वे में ब्रेक डाउन करता हूँ. एक है लोगों का मैटर, एक है एनिमल का मैटर. अब डॉग्स बिना कुछ किए कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? एक तो दे कैन सेंस आवर एनर्जी. मे बी कभी तो ही फेल्ट सम थ्रेट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर कैरिंग सम थ्रेटनिंग एनर्जी विथ यू, एंड देन उसको वो आपसे रिलक्टेंस कुछ आ गया या फिर ही फेल्ट थ्रेटेंड एंड ही बार्क्ड एट यू. You reinforce that barking by getting more scared. So then next time, see, animals, dogs especially, they are creatures of habit. कोई भी चीज repeat होती है, they create an association. So then for you also it got an association was created, right? So that's why you waited outside for 3 hours without stepping in. So वो एक फैक्टर होता है. दूसरा फैक्टर डॉग्स के बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि अराउजल करके एक चीज होती है. अराउजल इज लाइक एन एक्साइटमेंट के एक आगे का फेज जहाँ पे डॉग को और उत्तेजित कर देता है, डॉग को और ज़्यादा ड्राइव में डाल देता है, हाइपर कर देता है, एंड देन द डॉग कैन गो इनटू रिलीजिंग दैट ड्राइव. ना हाउ वुड अ डॉग रिलीज? हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं. हाँ, डॉग का जो इंस्टिंक्ट है वो बार्क करेगा, वो चेस करेगा, उसको मज़ा मिलता है. करेक्ट. अभी इनफैक्ट ऑडियंस को बताऊंगा, हम अभी नया कंटेंट लेके आ रहे हैं इस टॉपिक पे लेके आ रहे हैं कि हाउ अ डॉग एक्चुअली लुक्स एट इट, कि एवरी डॉग इज नॉट बीइंग हिट बाय अ व्हीकल. हमें लोग फिर डांटते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो. नहीं, लेकिन वो रियलिटी भी है ना. वी हैव टू शो द ट्रूथ. सेकंड एस्पेक्ट है ह्यूमन का एस्पेक्ट. ह्यूमंस ट्राई टू क्रिएट दैट लेफ्ट राइट ब्लैक वाइट ऑल ऑफ दैट एस्पेक्ट, राइट, कि यही सही है यही सही है. हम सेंटर ग्राउंड पे आना नहीं चाहते. तो वी आर लाइक नहीं, इफ वी शो और वी क्रिएट दिस इमेज इट वुड मेक कंपैशन. बट कंपैशन झूठ बोल के नहीं क्रिएट होता, इज व्हाट आई फील. कंपैशन नॉलेज से, डर जाता है नॉलेज से. इफ यू आर एबल टू गिव द राइट नॉलेज यू कैन एक्चुअली क्रिएट गेट रिड ऑफ फियर, एंड देन जब फियर निकल जाता है ना, तब धीरे धीरे कंपैशन डेवलप होने के लिए जगह मिल जाती है. तो ये हम दोनों तरफ लड़ते हैं और एक फेक इमेज कभी कभार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. तो वी हैव टू बी ऑन द रियल साइड. एंड it's also lack of awareness. A lot of feeders, dog lovers don't know how dogs actually function. So their intent is good, but the awareness is still not there. Got it. I have much clarity now on this though, but I still feel ki online it's a very divided kind of a situation, right, wherein people that are dog lovers, feeders, and that are working in this community like you and I, we are always looking at things from the dog's perspective, and people that are on the opposite side, not in this community, they are looking at it from a human's perspective. I have heard stuff like not having dogs in the lift, not having dogs in the society, you can't walk the dogs in the actual park जो आपकी बिल्डिंग के नीचे है, you can't आपके डॉग्स को आपको पार्किंग लॉट में वॉक कराना पड़ेगा जो कि पूरा अंधेरा एंड बंद रहता है. Yeah, these are some of the most common. Use stairs with dogs. मतलब 10-10, 15-15 फ्लोर की बिल्डिंग में, is it possible to actually climb 10 floors with a dog? It's impossible. So this is something that I wanted to, because it's a very, what do you call, domino effect, right? यहाँ पे किसी डॉग ने किसी बच्चे को काट लिया या किसी बच्चे को भौंक दिया किसी बच्चे के ऊपर. The parent is going to make a complaint in the society. The society is then going to go ahead and release a notice कि आपके dogs यहाँ पर allowed नहीं है. So what do you think about inclusivity in with pet parents that in living in the society? We I think are getting exclusive and not inclusive, because पहले ये मैंने नहीं देखा था कि आप पार्क में डॉग को नहीं लेके जा सकते, आप अपनी बिल्डिंग के नीचे नहीं चला सकते. ये सब पहले नहीं होता था. मतलब if you look at it for about like 3-4 years back, कोविड के पहले अगर आप देखो तो ये नहीं था. ये मैंने सुना भी नहीं था कभी कि आप अलग लिफ्ट में डॉग को लेके जाओ. मतलब बहुत हैप्पीली लोग बोलते थे कि यार आप चले जाओ. कोई डरता था तो कहता था आप चले जाओ, मैं अगली लिफ्ट में आ जाऊंगा या व्हाटएवर. बट अब ऐसे लगे आप डॉग को क्यों लेके आए हो लिफ्ट में, डॉग अलाउड नहीं है. ये हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट exclusivity that is happening in the society for pets and pet parents? So इसका ना एक सिंपल सा फैक्ट है. चीज़ें बदलती गई पोस्ट लॉकडाउन इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एक्सपोजर बढ़ गया लोगों का, है ना. मतलब आज जो हमारे थर्ड जनरेशन्स भी, उनके पास भी फ़ोन है, एंड दे ऑल्सो स्क्रोल थ्रू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया. एंड व्हाट्सअप करके एक चीज़ होती है ना. A school of thought. Yeah, I'll just stick to that. आगे नहीं बोलूँगा ज़्यादा, कुछ समझ गए, समझदार को इशारा काफ़ी है. So a lot of fake information, like you said, domino effect क्रिएट होता है. And
अनफॉर्चुनेटली आज भी आप देखोगे वीडियोस हम बनाते हैं, अगर नेगेटिव हुक रहेगा ना तो ज्यादा जल्दी चलेगा. व्हाई डिड यू से कि टेमिंग ऑफ द डॉग्स का वीडियो ज्यादा जल्दी वायरल होता है? क्योंकि स्टार्ट में एक नेगेटिव हुक आता है कि डॉग काट रहा है, डॉग ये कर रहा है. Yeah. Our brains are hardwired to, get more attached or more hooked onto something negative rather than positive. Yeah. Yeah. So I think the kind of growth of pet population outside dog population, dog lovers का जो growth हो रहा है rapid, कि obviously people are becoming more, जैसे वो नो किड वाली कंसेप्ट आ रही है अभी. आर जनरेशन हमारे थोड़े they're getting more sensitive towards animals, so वो लोग पेट्स रख रहे हैं and all of that. तो all these matters are happening, but at the same time there is a segment of people जहाँ से कुछ चीज़ फैलती है, उसमें से I think that would be 10% of people only, which may actually hate. But वो जब किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं ना, जैसे अब ये मैटर चल रहा था बीच में, है ना, तो वो जब कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, तो जो 60% न्यूट्रल पॉपुलेशन होता है ना, दे थिंक ये तो ऐसा ही है. एक कुत्ते ने काटा, कुत्ता अग्रेसिव ही है. यहाँ पे कोई किसी और जगह पे कई और साल पुराना वीडियो वायरल हो गया, तो दे आर लाइक अब नीचे के सारे कुत्तों को हटाओ, ये तो काटते हैं. करेक्ट. तो एक मास हिस्टेरिया वाला सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है ऐसे सिनेरियोज में. तो नेगेटिव मार्केटिंग को कैसे हम तोड़ सकते हैं? वी हैव टू कीप शोइंग द पॉजिटिव्स एंड वी हैव टू हैव मास अवेयरनेस अबाउट इट. वेरी वेल सेड. सो ये चीज, दैट इज द ओनली वे. विदाउट दैट इट्स नॉट. सो आई ऑलवेज अर्ज पीपल, अभी हमारे साथ जो हमारा वर्कशॉप्स होता है, प्रोफेशनल वर्कशॉप्स होते हैं, नए यंग जनरेशन से, उसमें हम एक टॉपिक ही रखते हैं कंटेंट क्रिएशन का, कि जाओ बनाओ वीडियोस, बट सेंसिबल और एक्चुअल वैल्यू वाले बनाओ, है ना, एंड लेट द मासेस नो. मैंने आज अगर 4 टॉपिक्स पे वीडियो डाल दिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाले, तो वहाँ पे बात नहीं खत्म होगी. वो 4 टॉपिक में 400 बार भी डालूंगा ना, तो भी मुझे लगता है कम रहेगा. बट दैट इज समथिंग दैट हैज टू कीप गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो पीपल नो द काउंटर एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड, ओके दिस इज हाउ इट इज. प्लस अनदर फैक्ट टू इट इज कि ये जो गेटेड कम्युनिटीज आ रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर होता है. आज भी आप जाओ इंडिविजुअल बिल्डिंग्स में जाओ, या फिर आप ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे, you're right. Individual buildings are not that problematic. Not but that problematic. Gated communities and residential complexes and stuff like that, they are very very problematic. Yes. The minute I heard कि आपको डॉग को पार्किंग लॉट में चलाना है, which I parked the car in the parking lot, तो मैंने देखा वहाँ पे लाइट का एक स्पेक नहीं है. मतलब एक ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट शायद लगी हुई थी. देर इज नो एयर, देर इज कुछ हवा नहीं आ रही है, कहीं कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड इट्स रिटन इन बिग वर्ड्स एंड पीपल आर फॉलोइंग कि आपको पार्किंग लॉट में ही आपके डॉग को वॉक कराना है. एंड इन माई हेड आई वाज जस्ट लाइक यार, ये यहाँ पे डॉग चल के करेगा भी क्या? यू अंडरस्टैंड? इतना घर में ही हम उसको गोल गोल विद एन इंटरैक्टिव टॉय या कुछ खिला देंगे तो दैट डज द वर्क. बट द स्मेल फॉर हिम टू गो स्मेल अदर पीपल, अदर डॉग्स, मीट, लुक एट अदर पीपल, जस्ट लुक आउटसाइड मैन. वो बंद है ना घर में घंटों से, पूरे दिन. तो जस्ट दैट 1 hour when he gets to see the world the way it is, you're trying to stop that also. Correct. But again, that's what it comes down to, awareness. And at the same time, एक और मैटर यहाँ पे आ गया है, because there is so much of pet parent community का growth. There's so much of growth in that. It is also leading to irresponsible pet parenting. Yeah. वो भी एक अलग पूरा मुद्दा ही है, क्योंकि फिर वो 1-2 के वजह से, and that's how the world works. That is how it is. एक की गलती 100 पे भारी पड़ती है, वैसे है. That's true. तो again, there are laws that are there, but वो उतने strong नहीं है फिलहाल. There are certain things that are being said out there, जो मैं अभी directly publicly नहीं बोल सकता, सेंटर का चल रहा है. So if those things work, we will have more stronger and stricter laws against irresponsible pet parenting. है already, लेकिन it will become more streamlined, guidelines और strong होंगी, and then all the RWAs, all the gated communities would also have to follow that. जैसे आज भी अगर कोई बोलता है आपको कि आप लिफ्ट में नहीं लेके जा सकते, you can challenge the committee, you can get it sorted. But जितना we try, see I try, मेरे साथ जो एक AWO है जो काम करते हैं हम लोग साथ में इन सब मैटर्स को हैंडल करने में, we try कि जितना आप amicably साथ में रह के, साथ मिल के डायलॉग से ख़त्म कर सको बात, we have to do that, because सबको एक जगह रहना है, एक ही साथ रहना है. आप भी उसी सोसाइटी में रहते हो, आपने भी उतने ही पैसे भरे, आप भी उतने ही मेंटेनेंस देते हो. करेक्ट. तो आई थिंक स्लोली इट वुड इम्प्रूव, स्लोली इट वुड बिकम बेटर, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये सर्ज हुआ है. तो लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो टेकिंग टाइम एडजस्टिंग विद द फैक्ट दैट वी लिव सराउंडेड बाय सो मेनी डॉग्स. बट द सिचुएशन वुड डेफिनेटली इम्प्रूव द वे इट्स गोइंग अहेड इन द नेक्स्ट 4 to 5 years.
So we were also having this conversation with Inspector Sudhir. We shot a podcast with him some time ago, and that's when I realized कि यार ये जो gated communities में जो rules है ये सब फसाड है. ये it's not allowed to have these rules in your societies also. You can challenge them. And when I spoke to Mr. Sudhir, he told me कि यार अगर आप जानते हो किसी को जिसको ये तकलीफ है या जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, just send them to me. And I was like, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? आई डेंट नो, बिकॉज ये मेरे बिल्डिंग में भी है, मेरे बगल वाली बिल्डिंग में भी है, उसके बगल वाली बिल्डिंग में भी है. आई स्टे हियर. ये मेरे तो आसपास हर जगह है ये कि आप एक लिफ्ट में लेके जा सकते. अब तो बहुत ही झगड़ा करने के बाद एक लिफ्ट असाइन हुई है जिसमें आप डॉग्स को लेके जा सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक दैट ये अवेयरनेस भी थी कि ये हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस एंड दिस कैन बी चैलेंज डायरेक्टली. सो आई मीन व्हाट इन्फॉर्मेशन ही गेव मी वाज कि आप एक रिटन नोटिस लेके आओ कि उन्होंने रिटन दिया हुआ है कि आप नहीं कर सकते हो, एंड देन वी विल फाइल समथिंग एंड वी विल डू समथिंग. सो एनीबडी दैट इज वाचिंग दैट इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन देयर कम्युनिटीज फॉर वॉकिंग देयर डॉग्स और फॉर just taking their dogs down using lift and stuff like that, this is a message to all of you that this is not legal, it's not allowed. They are just trying to मतलब वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसा कह सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट अलाउड. इफ़ यू आर फेसिंग दिस, प्लीज़ आस्क देम टू गिव यू अ रिटन नोटिस. प्लीज़ टेक द नोटिस विच इज़ साइंड बाय देम टू द पुलिस स्टेशन नियर you and tell them that this is happening because it's illegal. It's not allowed to be doing this. And yeah, hopefully it'll help you solve your problem. Definitely. So before speaking to you, Akash, we on Pause India's Instagram page, we asked some people what are the questions that they would like to ask you, or what are the solutions that they would like to directly find from you. And one of the most common questions that we got is not a very problematic question, let's say, but people are trying to understand, do dogs get jealous? Okay. So if do dogs get jealous if you are with your partner, or if you meet another dog? Do dogs have that feeling of jealousy? So, have you heard the word called unconditional love? Yes, I have. It's not just love that is unconditional. There are a lot of things that a dog does is unconditional. So जब dog काटता भी है ना, lot of people are like, मेरा dog प्यार करता है तो बहुत unconditionally करता है. इंसान काटता है ना, तेरे को 2 दिन खाना नहीं दूंगा. कैसे काटा तूने मेरे को? That is also unconditional. As in, he's not putting a condition behind it. Jealousy, if you take it by definition, right, it falls under the conditional emotional aspect, because with jealousy, you slowly also can start become envious of something and धीरे धीरे grudges की तरफ जा सकते हो या कुछ hold कर. तो ये एक spectrum है. It does happen in dog, but I rather prefer calling it possessive behavior. Because what dogs do is dogs possess, like dogs try to claim. Like, this is mine. This is mine. Correct. Because they are pack oriented species. Yeah. बाहर भी आप देखो पैक कैसे फॉर्म होते हैं, क्लेम करके स्पेस. हाँ. We are also pack oriented species. Yeah. हमने भी वही किया. हमने खाली बाउंड्रीज फिजिकल डाल दी है. उन लोगों की फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, उनकी ये बाउंड्री होती है. Got it. या फिर सेंट से दे वुड Scent, एंड yeah. स्पेस से कि भाई Yeah. इधर के आगे आओगे ना तुम ऐसा करूंगा. राइट. सो दे क्लेम. So they definitely portray possessive behavior which looks like jealousy, but I tend to tell people do not look it from the lens of human being as jealousy, because human बहुत सारा emotion अपना उसके साथ attach कर देता है, and a lot of dogs get reinforced in a wrong way and resource guarding की तरफ बढ़ जाती है बात, क्योंकि dog insecure हो जाता है उस वजह से. अगर एक simple example दूँ इसका, तो जैसे say for example, कभी देखे ऐसे मस्ती वाले वीडियोस वेयर वन पर्सन इज ट्राइंग टू हिट द अदर पर्सन एंड देखते कि इससे क्या किया, इससे क्या, एंड दे फील हैप्पी अबाउट इट कि माय डॉग इज ट्राइंग टू स्टॉप दिस. A, it is just a hyper behavior. B, the dog is, if the dog is possessive, he would try to grab and stop that from happening. अगर इसमें थोड़ा सा भी बात, अगर उसका मूड थोड़ा सा भी हैप्पी गो लकी से स्विच होके इनसिक्योर की तरफ गया फॉर एनी रीजन, मे बी ही इज एन इंटैक्ट मेल, बाहर फीमेल हीट में ये कंफ्यूजन और कियोस में, बिकॉज ही हैज टू मे बी हैव द अर्ज ऑफ मीटिंग, एंड ही फील्स इनसिक्योर इन दैट मोमेंट. He has some smell, he hears some sound that we can't. He feels insecure, he feels slightly nervous. Got it. That can escalate. Got एक बार escalate होगा, you would start that negative feedback loop कि अरे इसने तो काट लिया. फिर वो डर, फिर अब आप डर रहे हो अगली बार, तो ये थोड़ा और टेंस होके, समझ रहे हो ना, इट्स लाइक अगेन लाइक द वर्ड यू यूज, डोमिनो इफेक्ट. तो वो एक फीडबैक लूप शुरू कर देता है नेगेटिव वाला. So let's say they are not jealous, but they are possessive. They're possessive. Because they are pack-oriented species.
Yes. So they try to claim what's theirs. Yes. Right? And Yes. if rightfully put and maintained, this should not turn into a negative behavior. They should not turn into. It's a sweet behavior at times, but that's why you need to understand your dog. कि कहाँ पे you have to put a boundary, कहाँ पे Yeah. you have to put limitations, Yeah. so that it doesn't escalate. Got it. So talking about negative reinforcement, I have seen a lot of it. Obviously, because I'm working for the company since about 8 years now. Again, I would like to tell you a story, okay? I was once in an auto rickshaw passing Juhu. And this is about 4 years ago or something like that. Obviously, JVPD is a very premium location. Lots of dogs, very exotic breeds and stuff like that. There's this one signal जहाँ पे मेरा ऑटो रुक गया. And I saw this dog walker that is pulling the shit out of the dog. It's a Shih Tzu. Like कितने का होगा? 8 किलो का, 7-8 किलो का होगा Shih Tzu. इतना सा छोटा सा Shih Tzu. And he wants to smell, do something, go in the other direction. We know dogs, right? So the dog walker having absolutely no idea about what he is doing. उसको बस ये है कि किसको घसीट के 1 किलोमीटर चला के मुझे घर पे लेके जाना है. He is dragged the dog. The dog is not even walking. It's being dragged on the footpath. क्योंकि उसका क्या ही वजन, उसका कुछ वजन ही नहीं है डॉग का. तो वो आगे अपने फोन में देख के, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, डॉग वॉकर्स अपने फोन में यूजुअली देख के अपने पीछे जो डॉग रहेगा उसको घसीटते वॉक कराते हैं. When I saw this, so for a second in my head I was like, dude, this is so wrong. But then again the next second I was like, but fuck it, it's his dog and you know किसी ने बोला होगा उनको करने के लिए or whatever. So I ignored it. But then again I was like, but no, this is wrong. So I asked my auto guy to stop. I went to the man and I was like, आप फ़ोन या तो आप फ़ोन यूज़ कर लो या तो आप उसको चला लो, क्योंकि आप उसको घसीट रहे हो. तो वो कहता है कि नहीं वो चलता नहीं है, बहुत ज़िद्दी है, ऐसा है वैसा है. ही स्टार्ट टेलिंग मी द डॉग इज़ नॉट नाइस, नॉट मैनर्ड एंड नॉट वेल बिहेव्ड एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक कि आप अपने डॉग के बात कर रहे हो कि अपनी चाची की बात कर रहे हो? ही इज़ अ डॉग, ही इज़ गोना डू दिस, राइट? सो डोंट ड्रैग हिम. एंड उधर 5-10 मिनट उसको समझाते एंड अदर डॉग वॉकर, वॉचमैन, ये वो सब लोग आ गए. वो जो बंदा था, जो डॉग वॉकर था, उसको समझ नहीं आया एंड तक कि वो क्या गलत कर रहा था. आई अनफॉर्चुनेटली हैड टू एंड अप कॉलिंग द पेरेंट्स ऑफ द डॉग एंड टेलिंग देम दैट यू नीड टू चेंज द वॉकर. ही इज ड्रैगिंग योर लिटिल पपी ऑन द रोड. द पपी इज नॉट इवन डूइंग एनीथिंग. वो खाली घसीटे जा रहा है उसको कि उसको नहीं मन है चलाने का. यू नो उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया है, वो भी थक गया है, स्टफ लाइक दैट. सो आई कॉल्ड द पर्सन एंड आई टोल्ड देम कि यू नीड टू चेंज द वॉकर बिकॉज दिस इज वॉट इज हैपनिंग. एंड आई हैव सीन दिस नॉट एट वन प्लेस, आई हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स कि जो डॉग वॉकर्स हम अपॉइंट करते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है, तो हम जो डॉग वॉकर्स अपॉइंट करते हैं, दे आर डूइंग दिस ओनली, ड्रैगिंग द डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, स्पेंडिंग टाइम ऑन देयर फोन. कोई लोग तो चलाते भी नहीं है डॉग्स को. हाँ, एक कोई कोने में जाके बैठ जाएंगे, फिर जब उनका हो जाएगा टाइम तो लेके वापस छोड़ देंगे. सो एंड नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हैव यू सीन दिस ऑन द रोड्स? Absolutely. Like almost every time. Yeah. Almost every time. And every time the dog is with a walker, I've seen this. Yeah. But यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं. Yeah. जैसे वॉकर्स का, जैसे मैंने बोला, बिहेवियरिस्ट या ट्रेनर्स हो गए, अलग अलग चीज़ें हैं थोड़ी. बट ये वाले एस्पेक्ट्स भी अनरेगुलेटेड है. वॉकिंग इंडस्ट्री तो उससे ज़्यादा अनरेगुलेटेड है. अब फिलहाल वॉकर्स कौन रहते हैं? ये लोगों के ड्राइवर रहते हैं, हेल्प स्टाफ रहता है, या कोई किसी का वॉचमैन रहेगा. अब लॉट ऑफ टाइम पीपल गिव इट ऑन गुडविल. गुडविल पे दे दिया, या फिर जो माइग्रेट करके अपने आते हैं टू गेट जॉब्स एंड ऑल दैट. अभी वॉकिंग इज अ वेरी क्विक बिजनेस. फटाक से पैसे आपको कमा लेते हो. आप 8-10 डॉग रख लो, 5-6 हज़ार 7 हज़ार कमा लो एक डॉग के पीछे. तो जस्ट कैलकुलेट कितना हो रहा है महीने में, है ना? सो इट्स हाउ दे सी इट. बट द पॉइंट इज अगेन, बिकॉज देयर आर नो रेगुलेशंस, देयर इज नो ऑफिशियल ट्रेनिंग, देयर इज नो एक मीडियम जहाँ से उनको जाना है, समझना है इन चीज़ों को. नो सर्टिफिकेशन ऑल्सो. डॉग बिहेवियर का कहाँ सर्टिफिकेशन है? वो भी नहीं है अपने पास. वी ऑल जस्ट जो एक पोजिशन पे है, दे आर प्रोवाइडिंग देयर ओन सर्टिफिकेट्स, राइट? बट एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी का कुछ है नहीं. Okay, we don't have anything like that. We don't have anything like that. Okay. So for that we need some form of regulation to come forward. But at the same time, लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि when you provide a service, it's going to cost. Yeah. Correct. आप एक्सपेक्ट करोगे 3-4 हज़ार में मेरे कुत्ते को कोई वॉक कराए. Correct. And somebody who's going to do it professionally. Like I know a lot of brands and a lot of people who provide professional dog walking service, and they're good. Correct. But then the prices are such that everyone can't afford it. Can't afford it, right? So हमें एक ऐसा ट्रेंड बनाना होगा. लाइक वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस पार्ट कि हाउ वी कैन सेंट्रलाइज दिस अ लिटिल बिट, द वॉकिंग पार्ट. सो वी हैव टू क्रिएट अ ट्रेंड हियर वेयर द मार्केट नीड बिकम्स सच
that walkers are easily available. The people know अगर मुझे वॉकिंग बिजनेस में जाना है, ये 4-5 ये इंस्टीट्यूट्स है या ये जगह है जहाँ पे मुझे जाके ये कोर्स करना है, उसके बाद मुझे ये चार्ज करना है और यही स्ट्रीमलाइन रखना है. यहाँ पे क्या होता है, कोई अगर 6,000 दे रहा है, ये बोले मैं 3,000 में कर दूंगा. That's true. That's समझ true. रहे हो? पीपल आर लाइक ओके कर लो. Yeah. दैट इज yeah. अ लॉट ऑफ पीपल्स टेंडेंसी ना. तो वो एक प्रॉब्लम होता है. एंड द अदर फैक्ट इज इफ यू गो टू बैंड्रा, खार, यू नो टाउन साइड, यू हैव पीपल्स हेल्प स्टाफ वॉकिंग. तो उसमें एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि हेल्प स्टाफ समटाइम्स आर वेरी इल ट्रीटेड इन द हाउस. वो उधर का गुस्सा वहाँ निकालते, ये मैंने देखा है फॉर अ फैक्ट. मैंने देखे कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे. तो वो ऐसा नहीं कि उन्हें डॉग पसंद नहीं है, वो घर का गुस्सा कुत्ते पे निकालते हैं. Got बट it. रेगुलेशंस आर नीडेड एंड ट्रेनिंग इज नीडेड ऑफ हाउ यू कैन. अभी वो चल नहीं रहे, तो उसको कैसे चलाना है वो तुमको it. पता होना चाहिए. Got it. Got it. घसीटना नहीं है ना. Got it. करेक्ट. So another thing that this brings me to another topic which is negative reinforcement. I have जितना मुझे पता है उतने से मुझे आइडिया है कि 10 में से 8 घर में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता ही है. कि अगर कुत्ते ने किसी पे भौंक दिया या आपके डॉग ने कोई मेहमान आ रहा है तो उसको बंद कर दिया, आपने खिड़की के बालकनी में बंद कर दिया धूप में उसको. आप 2-3 दिन बाहर गए हो तो आपने खाना रख के उसको बाहर बंद कर दिया या 2-3 दिन घर में छोड़ दिया. अगर सुन रहा नहीं है तो उसको मार दिया, अगेन कहीं बांध दिया, स्टफ लाइक दैट. सो what do you think about negative reinforcement? We have so many videos on social media that just make you cry, you know, when you Yeah. look at the condition of the dogs. मेरे को ये नहीं समझ में आता ये लोग डॉग रखते ही क्यों हैं जब उनको ऐसा करना है उनके साथ. तो what is the point of keeping the dog? Correct. अभी recently like 2-3 days ago I saw this video of a white Pomeranian in the balcony for 4 days. वो किबल के साथ था, किबल और पानी वानी के साथ था, but he's shitting there, he's peeing also there, he's eating also there, and he's also tied in the balcony. He's tied. And somebody from the सामने वाला building record किया. They called NGOs and cops and stuff like that this dog is howling, crying since so long. There's nobody in the house and then they rescued the dog. अभी तो काफ़ी सारे एक्टिविस्ट है तो चीज़ें थोड़ी बेटर है, बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो घर में होता है पेट्स के साथ, वो आई वॉन्ट यू टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ डू वी टैकल दिस एंड व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन और ऑल्टरनेटिव वे टू डील विद सिचुएशंस लाइक दिस, बिकॉज नोबडी बेटर देन यू टू टेल पीपल कि सही तरीका क्या है इस चीज़ के साथ डील करने का. करेक्ट. सो देखो, अगर मैं डॉग ट्रेनिंग के टेक्निकल की बात करूँ ना, क्योंकि मैं जनरली वो टेक्निकल से दूर रहता हूँ, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन सिलेबस टू सिंप्लीफाई इट फॉर पीपल. जैसे आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोला, इट्स नॉट ऑन टेक्निकल बेसिस, इट इज नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. वो आप पनिशमेंट की बात कर रहे हो. सो जब डॉग ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट बनाया गया, देयर वर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ डॉग ट्रेनिंग: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट. Oh, okay. So positive reinforcement is adding something. Negative reinforcement is removing that thing. Okay. खाना दिया नहीं, ये समथिंग है तो उठा वापस के ले बार्क लिया. कर रहा है तो हटा दिया खाना, हाँ. बार्क शांत हो गया, खाना वापस दे दिया. ये पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स वाले एस्पेक्ट हो गए Got ऑन it. दोज टेक्निकल टर्म्स. Got it. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज पनिशमेंट पार्ट. Punishment proper. बट ट्रेनिंग वर्ल्ड में भी वो पनिशमेंट क्या होता है इज मोर लाइक अ करेक्शन. नाउ व्हाई आई प्रेफर नॉट यूजिंग दिस वर्ड्स इज बिकॉज दिस वर्ड्स हैव एन इमोशनल कनेक्ट टू आवर हेड. हमने पनिशमेंट एक तरह से देखा है लाइफ में, हाँ. पेरेंटिंग स्टाइल देखी है ना. हमारा जनरेशन, हमारे पहले वाला जनरेशन, तो एक पेरेंटिंग स्टाइल थी वो. हम डॉग पे वही लगाते हैं. किसी के घर में उन्होंने देखा है कि बचपन में बच्चे ने अगर वास तोड़ दिया तो रूम में उसको बंद कर दिया, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा. दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, रात को खाना. हाँ. अंदर बैठ के सोच तूने क्या किया है. वो कुत्ता है, वो बैठ के सोच नहीं सकता एक जगह पे, बिकॉज अ डॉग कैन ओनली कोरिलेट द थिंग्स इन द मोमेंट. Habit, association. So they have associative memory. We have episodic memory along with it. मतलब क्या होता है episodic memory का, कि अगर आप एक एक्सपीरियंस आपका हुआ, जैसे सपोज यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, आपने खाना खाया, यू डिडंट लाइक इट, यू प्यूक्ड इट आउट, इट वाज अ स्पेशल इवनिंग, मैनेजर से झगड़ा हो गया, यू केम बैक, यू मूव्ड ऑन, महीना हो गया. आप एक रिलेटिव के घर गए, वहाँ पे हंसते खेलते मूड में आपके एक कज़न ने आपको फोटो दिखाया, ये रेस्टोरेंट जाते हैं. पहला क्या ट्रिगर होगा? एसोसिएशन. हंसता खेलता मुंह लटकेगा. दैट इज योर इमोशनल ट्रिगर टू, एज इन इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट ट्रिगर रिएक्शन. उसके बाद आप बोलेगे ये रुक, तेरे को पता है क्या हुआ था, रुक तुझे मैं बताती हूँ क्या हुआ था. दिस बताती हूँ पार्ट इज एपिसोडिक मेमोरी.
which allows you to remember, recollect, visualize, reimagine, revisit, replay, rewind as many times as you want. Got it. लिमिट है ना उस चीज को भी, हम हर एक Got it. मेमोरीज इस तरह नहीं रख सकते, Right, right. बट सम मेमोरीज, मेनी मेमोरीज वी कैन कीप इट. हम एक जगह बैठे बैठे 10 साल पुरानी बात को लेके रो सकते हैं हाँ. और 20 साल पुरानी बात लेके हंस सकते हैं. Hmm. ये कैपेबिलिटी डॉग के पास नहीं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई देर अनकंडीशनल. Got क्योंकि it. किसी से रिवेंज लेना है तो डॉग को पता होना चाहिए ना. रिक्शा ने टक्कर लगाई है तो वो आज सब रिक्शाओं पे कर रहा है क्योंकि एवरीडे ही इज डीलिंग विद द ऑटो रिक्शा, बट ही कांट सिट एंड रिमेंबर दैट कौन सा था वो? उस दिन, उस तारीख को, उस समय पे ये रिक्शा ने मेरे को ठोका था. नहीं तो Got it. बेचारा सारे रिक्शाओं पे नहीं भड़कता ना, वो Got तो उसका नोस देख के जाके ढूंढ के उसको काट लेता. Hmm. तो दिस इज समथिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि डॉग्स डोंट थिंक लाइक अस फर्स्ट. सेकंड है पनिशमेंट. वी पनिश इन द वे वेयर वी हैव लर्नड इट. मारा, डांटा, धमकाया, ये कुत्तों को ये भाषा नहीं समझती. Hmm. इसीलिए वी प्रिफर द वर्ड कॉल्ड एज करेक्शंस. करेक्शन क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइक अ स्नैप आउट. डॉग एक चीज पे फिक्सेट होता है फॉर अ बिहेवियर, लाइक ही इज बार्किंग एट समवन. Hmm. You need to redirect, interrupt, snap out, or correction word, what we use, right? That switches the state of mind from one to another. And then उस state of mind पे switch करने के बाद उसका एक follow through होना चाहिए कि अब यहाँ से snap out हो गए, आगे क्या करना है. Got it. ये एक प्रोसेस है. Got उसका it. हमने एक फॉर्मूला बनाया है, करेक्शन, रीडायरेक्शन, फॉलो थ्रू, टू सिंप्लीफाई इट फॉर पीपल. Yeah, I also understood it very clearly actually. बट ये चीज़ जो है ना, ये लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची है. एंड मैं मानता हूँ, देखो इंसान है, मैं इंसानों को ना इंसानों की तरह ट्रीट करता हूँ. मैं ये नहीं समझता कि अगर अवेयरनेस भी हो गई तो एवरीवन विल बिकम भगवान. वैसा नहीं. बट कभी कभार गुस्से में हो जाता है, डांट देते हो आप डॉग को, ऐसा एक फटका लगा देते हो, दैट इज स्टिल ओके. आई वुड रादर से एज अ प्रोफेशनल आई शुडंट बी सेइंग इट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई वुड से इट, दैट इज स्टिल ओके कि गुस्से में आपने, बट दैट अवेयरनेस बैक ऑफ योर माइंड, राइट, Yeah. दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट द नेक्स्ट टाइम. Got it. दैट वुड गिव यू अ रियलाइजेशन इमीडिएटली. लोग रियलाइज नहीं करते, गुस्से का फॉलो थ्रू करते. अब रुक, अब तेरे को बालकनी में बंद करता हूँ. हाँ. समझ रहे हो? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बहुत गलत है. दैट इज रूवनिंग देयर ट्रस्ट विद देयर डॉग्स, देयर Yeah. रिस्पेक्ट विद देयर डॉग्स, एंड अल्टीमेटली हैम्परिंग देयर लव एंड लॉयल्टी फैक्टर विद द डॉग. सो दैट शुडंट हैपन. So when you talk about training, I hear that training and behavior, I hear that you speak a lot about positive reinforcement, and you talk a lot about training the pet parent rather than training the dog. So let's talk about what mistakes pet parents actually make in bringing their dog up. That's the first one. And another follow-up question that I would like to ask you is, are dogs able to understand good behavior and bad behavior of human beings? Can they differentiate in behavior of human beings? तो पहले तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. सो आई डोंट डील ओनली विथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ऑब्वियसली देर इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड देन देर इज व्हाट वी डू इज करेक्शन, Correction. विच इज हाउ यू कैन स्टॉप अ बैड बिहेवियर फ्रॉम हैपनिंग. Yeah. सो वो फिर लीश गाइडेंस से हो गया, या व्हाट अ टर्म दैट वी यूज अ लॉट एंड वी यूज अ लॉट इन आवर कम्युनिकेशन इज स्पेशियल प्रेशर. आपके स्पेस, द वीडियो दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, वो बेड से नीचे एंड देन आई जस्ट स्टूड देयर. Correct. Generally, growling के time पे you would either enter the space or you would immediately withdraw. Back off, yeah. But that time the bite was happening, हो गया था. तो I had to complete the follow through, letting the dog cool off. तो वहाँ पे मुझे calmly, confidently, relax खड़े रहना है for the dog to cool off. Then I move back. Because otherwise I'll reinforce that this is acceptable. But did I use anger? Did I use force? There was a force. See, मैं मानता हूँ There कि was बिना no force, but the one that you were doing with the pillow. But I think only you could do it, because I think हाँ, अगर I उस know situation, that is not a solution. yeah, मतलब हाँ. उस जगह पे अगर मैं भी खड़ी होती, and if a dog is trying to charge, हाँ. I will not be able to react the way that you yes, did. Yes. Oh, obviously. Yeah. That was something that we just started the session. मुझे पकोड़े लाके दिए थे उनके बब्बी ने, और वो just we were seeing something and that happened. So I had to step in. But that is something which we would not say कि it is part of the solution. Yeah. It is part of the process. Yeah. बट ह्यूमंस के लिए क्या करना है वो एक अलग होमवर्क होता है उनका, विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ प्रिवेंशन, लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंड सम इंटरवेंशन जहाँ पे दे हैव टू डू सर्टन एक्टिविटीज. बट दिस स्पेशल प्रेशर इज अ गेम चेंजर. यू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर स्पेस. फिर उसके मदद से, क्योंकि दैट इज हाउ डॉग्स कम्युनिकेट. हम थोड़े टाइम पहले स्पेस और हाँ. उसके बारे में बात कर रहे थे. हाँ. तो वी यूज अ ब्लेंड एंड अ बैलेंस्ड अप्रोच विथ पीपल ऑब्वियसली एंड विथ dogs especially, and with people. The most common mistakes that I've seen, and I would like to name one. Tell Most me. common. Yeah. Lack of boundaries of your own space.
I absolutely back you. I absolutely back you. I'll tell you why also, but go ahead. So हमने थोड़े टाइम पहले बात करी थी possessiveness की, jealous इस चीज़ की. See, I do understand कि now we have become more emotionally driven towards dogs, Yeah. but we need to understand that they come from their own thought process. So dogs have a claiming side to them. Not every dog. So every dog who would come and lean on me would not always be from a claiming perspective or from a perspective that now I'm going to act possessive और मैं कोई आएगा तो मैं Yeah. guard करूँगा. No. It is also for affection. Yeah. Obviously we can't see. I can't expect, like you said, कि for you wouldn't be standing and stepping in and doing that. Yeah. So I can't expect people to constantly micro read the dog. Yeah. Correct? Yeah. But अगर एक basic standard हमें पता हो कि जब आप घर में एक डॉग लेके आते हो, हम देखते हैं एक बच्चा आने के बाद ना 1 हफ्ते तक तो बच्चा ऐसे ही रहता है. हाँ. Right. Literally. हाँ. हाथ बैठ में. के भी ऐसे, हाँ. तो पपी है, आप नीचे छोड़ सकते हो. नीचे नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके दरवाजे के यहाँ पे. लेट द पपी एंटर द टेरिटरी. लेट द पपी एक्सप्लोर द स्पेस. डे 1 पे बाउंड्री सेट करो. डे 1 पे बताओ फर्स्ट दैट योर स्पेस हैज अ वैल्यू ऑफ बाउंड्री जो मैं बोल रहा हूँ. एंड स्टार्ट इन्वाइटिंग फॉर अफेक्शन, क्योंकि एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, एक एसोसिएशन बैठता है. नाउ व्हेन आई मीट पीपल, दे आर वॉकिंग देयर डॉग्स, वो डॉग दूसरे पे किसी पे चढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है, एंड देन आई टेल देम कि ब्लॉक करो उसको, तो डॉग इंसान का ब्लॉक देखता ही नहीं है. वो ऐसा नच करके बाजू से निकल जाता है. एंड देन पीपल आर लाइक माई डॉग इज इल मैनर्ड, माई डॉग इज लाइक दिस. वो तो मेरा सुनता ही नहीं है, इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. और व्हाई ऑल दैट इज हैपनिंग इज बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू सेट दोज बाउंड्रीज. सो अगर स्पेस के साथ हम अगर डे 1 से अगर बाउंड्री रखें थ्रू अ स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ इन्विटेशन बेस्ड अफेक्शन. एक चीज होती है, सारे ऑडियंसेस को भी बताना चाहूंगा, इन्विटेशन बेस्ड अफेक्शन, वेर यू अलाउ अफेक्शन ऑन इन्विटेशन. एंड जस्ट दिन में आप जैसे रैंडमली बैठे हो, टीवी देख रहे हो, थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो और अटेंशन मत दो. लेट हिम अंडरस्टैंड, थोड़ा डिस्टेंस रखना है. एंड जैसे ही वो अपना घूम फिर के इधर उधर देख के शांत होके बैठ गया, एक 5-10 मिनट बाद, इनफैक्ट 1-2 मिनट के बाद भी कर सकते हो, बट इफ यू कैन स्ट्रेच इट टिल 4-5 मिनट्स एटलीस्ट, एंड देन इनवाइट, आजा बेटा, भरपूर प्यार करो. So your dog understands कि we have, and this is a concept of space we follow with our fellow We follow humans with also. humans. Yeah. It is so funny and it is so almost ironic that we follow it with everyone. मतलब बिल्लियों के साथ भी है ना, because we have a perception बिल्लियाँ तो ऐसी होती है ना. वीडियोस भी बनते हैं तो बिल्ली और डॉग का कंपैरिजन दिखाते हैं, but dog is the only animal on the planet we don't ask for consent. राह चलते कुत्ता, ओए बी. All the girls. even men, Yeah, right? yeah. Even men. So consent कहाँ गया? वो एनिमल नहीं है, वो लिविंग बीइंग नहीं है, उसका भी तो कंसेंट So है. this states that as much as training and just knowledge and awareness is required for you to train the pet, उतना ही तुमको इंसान और पेट पेरेंट को भी ट्रेन करने के अरे लिए उतनी ज़्यादा, जरूरत है. 80% मैं तो बोलूँगा, 20% में डॉग का काम हो जाता है. डॉग लाइक भाई मैं तो सेट हूँ, इसको बताओ, वो ऊपर जो है दिख रहा है ऊपर, उसको बताओ. I have a different question, which is actually हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, but I don't want to let this go because I've seen this has happened with me and I've seen this happen to a lot of people. तो आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि I'm scared of dogs. I was one of them. I was really petrified of dogs. One of the incidents मैंने आपको Yeah, in fact, I बताया. wanted to know that coming from the petrified background and starting Yeah. Pause India. It's been I'll tell you, it's been a journey. But this was my first Yeah. bad, let's say, incident of dogs wherein जब मेरे को डर लग गया यार बहुत ज़्यादा, which was this one that जो मैंने आपको बताया, the dog was chasing me. Now another thing that I hate when pet parents do it. I absolutely despise it when pet parents do this. I'll give you a situation. Let's say आपका घर है ये, आप हो, आपके घर में आपकी वाइफ है, जो भी बच्चे हैं, and you have a dog, or maybe say you have 2 dogs, okay? And there is somebody who's coming into your house who's told you कि भाई मेरे को डर लगता है डॉग से, ठीक है, तो थोड़ा संभाल के या जो भी. तो सब नहीं बोलते हैं कि बांध दो, अंदर कर दो, बट लोग बता देते हैं कि यार तेरे घर में डॉग्स है, मुझे ना डर लगता है. नाउ एज अ किड तो नहीं समझ आती है चीज़ें, दैट्स फाइन. नाउ दिस इज व्हेन आई एम वर्किंग इन पॉज इंडिया फॉर years now, okay? I go to this vendor's house in Pune. He has 4 dogs. Now at this point I'm not scared of dogs, but जो मेरे साथ जो लड़की थी, जो मेरी कलीग थी उस टाइम, उसको भी बहुत डर लगता था डॉग से. एंड वेन वी स्टेप्ड इन टू द हाउस, उसको मैंने बताया था कि यार इसको थोड़ा डर लगता है, थोड़ा संभाल के. एंड ही हैड 4 बिग डॉग्स.
तो मैंने उसको बता दिया था कि आज लाइक इसको डर लगता है, थोड़ा संभाल के, कीप होल्ड द अग्रेसिव वन, ऐसा मैंने उसको बोला था. नाउ पेट पेरेंट्स बीइंग पेट पेरेंट्स, दे कुछ की तो मेंटालिटी होती है कि वो बांध देंगे, बंद कर देंगे, और कुछ की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो खोलेंगे दरवाजा, आजा आजा कुछ नहीं करेगा, आना तू आना कुछ नहीं करेगा आना. और भाई वो इंसान घुस रहा है, वो डॉग चढ़ के उसकी छाती पे ऐसे खड़ा हो गया, यू नो. नाउ you didn't stop your dog, and जो आदमी तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी हाल, वो तुम्हारे घर में नहीं आएगा पहली बात तो फिर से, ठीक है. सो आई वांट पेट पेरेंट्स टू आल्सो हियर दिस, दैट व्हेन somebody tells you their boundary कि भाई मेरे को डर लगता है, please have some precautions. This is not just for that person, it's for your dog also, it's for you also. बट वो होता है ना बिहेवियर कि अरे कुछ नहीं करेगा, मेरा डॉग है, कभी नहीं काटा किसी को, कभी लाइफ में नहीं काटा, आना 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 आना. एंड यू नो दैट डॉग इज बार्किंग, इज क्लाइंबिंग ऑन somebody's chest, he's trying to grab your leg, trying to pull your jeans. For somebody who's scared, they are not okay with that. Correct. So you need to either help that person ease out with your dog, or you need to help the dog ease out with that person. Some things that probably, I'm not a professional, but some things that probably I would do, not having this much information, is I would slowly मैं डॉग को लेके आती कि मीट दिस पर्सन एंड धीरे धीरे टच करो, स्मेल करो, आप लीश पे लेके आते हैं, सो दैट सामने वाला फील्स मिलो कंफर्टेबल. मिलो. जब डॉग भी शांत हो जाता, बैठ जाता, तो मैं छोड़ देती हूँ उसका, लीश वीश निकाल देती है. एंड देन आई वाज लाइक कि अब कुछ नहीं करेगा, अब तू चल फिर उठ, कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत यू कैन टच, यू कैन, बट एक वो मेंटालिटी होती है, आजा 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 कुछ नहीं करेगा. लिफ्ट में भी होगा, आजा आजा कुछ नहीं करेगा. यही सब चीज की वजह से द डॉग्स, सम अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस हैपन बिकॉज ऑफ दिस. The person is not ready, your dog is not ready, and you are not in the mental space to take care of anything. So what do you think about situations like this? ये मेरे साथ हुआ है, और ये मैंने देखा है हजारों लोगों को करते हुए, I'm sure आपने देखा होगा कि आजा आजा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. I think that is वो एक सिचुएशन है ना, यहाँ पे गलत हो सकता है. यहाँ पे डॉग तुम्हारा चढ़ सकता है, उसको काट सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है, और तुम यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक केयर ऑफ योर गेस्ट एंड द डॉग. सो आई वांट यू टू शेड सम लाइट फॉर जिसके साथ भी ये हुआ है या हो रहा है. आई होप आपके साथ ना हो ये, बट ऐसे सिचुएशन में ना वही बात आ जाती है, रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग. एंड इसमें छोड़ो पेट पेरेंटिंग, इसमें आती है बेसिक मैनरिज्म और कर्टसी. कि आपके घर कोई आया है तो आप एज अ होस्ट यू वुड मेक श्योर यू मेक देम फील कंफर्टेबल. प्रॉब्लम क्या है ना, बिकॉज पीपल थिंक कि एक डॉग ही तो है. अब लोग रेप्टाइल्स भी रखते हैं. मैं कल बोलूँ ये तो सांप ही तो है. वैसे अपने यहाँ पे नहीं है, बट बाहर रखते हैं ना. अपने यहाँ भी रखते हैं वैसे तो, ऑफ द रिकॉर्ड है, मुझे भी पता है. हाँ, मतलब just for the audiences of the record. But obviously we don't encourage that. But that's the point, right? You can't. Like I don't enjoy reptiles so much. But I would be okay in the presence. ठीक है? बट अगर मुझे आगे कोई फोर्स करता है ये ले, इनफैक्ट कैट्स ऑल्सो, आई हैव अ लिटिल एलर्जिक रिस्पॉन्स टू कैट हेयर. अगर मैं से इनक्लोज्ड एरिया में हूँ विद एसी ऑन तो मेरे को छींक आना शुरू हो जाएगी. तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ. मेरे कजन के घर पे या बिल्ली है, मतलब बिल्ली को दूर रखना मेरे से. ठीक है, आई एम वेरी प्रैक्टिकल ऑन दीज एस्पेक्ट्स, राइट? एंड दे आर रिस्पेक्टफुल. एंड दे आर रिस्पेक्टफुल ऑफ इट. मैं भी एडजस्ट करता हूँ, बट सी व्हेन यू ट्राई टू रिस्पेक्ट ना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट होता है. फिर सामने वाला भी एफर्ट लेता है कि ओके लेट मी सी, ये कुत्ता अब शांत हुआ, अब मैं जाके टच करूँ क्या. हाँ, लेकिन आप पहले ही ऐसा इमेज, वही मैं बोल रहा हूँ ना, बाउंड्री आपने आपके साथ कभी मेंटेन करी नहीं, आप सामने वाले के साथ क्या मेंटेन करोगे? एंड देन यू आर फोर्सिंग देम टू डू इट. दैट इज अ वेरी इल ड्रिवन थॉट प्रोसेस. एंड कुछ लोग अगेन इंटेंट इज गुड कि यार मेरा जेन्युइनली नहीं काटता, कर लेना, बट वो हमें समझना नहीं, वो है. एक तरीका होता है यार, तुम छोड़ नहीं सकते हो. लाइक व्हाट हैपेंड विद माय कलीग दैट टाइम वाज कि आप इमेजिन करो, गेट खुला, 4 डॉग्स, चारों इंडी, 3 इंडी, एक गोल्डन रिट्रीवर, उसकी छाती पे चढ़े हुए हैं ऐसे करके दे आर ब्रीदिंग ऑन हर माउथ. द गर्ल हैज ट्रॉमा. वो एक डॉग को उसके बाद उसने हाथ नहीं लगाया. किसी डॉग जिसके घर में डॉग होता है वो नहीं घुसती है. एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई एम लाइक यार ये तरीका नहीं है ये करने का. तुम पकड़ लो उसको, एक आने दो इसको अंदर, उसको टच करने दो, उसको देखने दो, सूंघने दो थोड़ा, उसको भी लेट देम. वो कुत्तों का भी सही तरीका नहीं है एक्चुअली. डॉग्स हैव टू स्निफ.
sniff in a more gentle and respectful manner. अगर यही 4 कुत्ते बाहर pack of dogs में रहते हैं, the rest of the pack would not allow this jumpy behavior. Yeah. That's how dogs are built. No, but if हमारे they are साथ in their territory और हाँ. वो उनको दिख रहा है कि 2 unique species हाँ, मेरे घर they are में घुसे- excited about it because Yeah, they're हमारा like- height ऊपर रहता है ना, so they हाँ. try to jump. Yeah. बट यहाँ पे वो आ जाता है कि अगर आपने बाउंड्रीज लगाई तो ये होगा नहीं, पहली बात. लेकिन सेकंड, बेसिक कर्टसी, बेसिक मैनरिज्म अगर आप में है तो आप सामने वाले को एक्चुअली फियर से बाहर निकाल सकते हो. Yeah, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट फियर्स आर रियल. Yeah. मैं आज भी वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे किसी पेट पेरेंट से डर के एक मैंने वीडियो भी बनाया था हाल ही में, नोएडा में कुछ हुआ था, लेडी डर गई और जंप कर दी. कमेंट सेक्शन आप पढ़ोगे, इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग. पीपल आर लाइक, अरे कुत्ते से डर गई, क्या हो गया, ये हो गया, वो. अरे आई एम लाइक, भाई डर एक्चुअल जायज़ है. वो बंदी गिर गई, वो तुमको दिख नहीं रहा. करेक्ट. लॉट ऑफ पीपल आर डिफेंडिंग द पेट पेरेंट ऑल्सो कि अरे वो तो शांति से जा रही थी, शायद ये आते हुए इसने कुछ रॉन्ग सिग्नल. अरे पीपल डोंट केयर अबाउट दैट. मैं चलते चलते थोड़ी मैं सोचूंगा मेरा रॉन्ग सिग्नल किसी के डॉग को ट्रिगर कर देगा, है ना. No, mishaps happen here and मिसहैप there. हैपेंस, Yeah. बट यू नीड टू हैव बेसिक. तो लीश कितना लंबा था कि द डॉग कुड गो दैट फार एंड एक्चुअली मेक समथिंग लाइक दिस हैपन. गेटेड कम्युनिटीज का प्रॉब्लम. Got छोटा स्पेस है या स्पेस होके भी we feel कि we have owned it, तो now we own everything. Yeah. But we need to come to the center. जब तक हम सेंटर पे नहीं आते ना, एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं Yeah. ना, हमने एक दूसरे के बारे में सोचना कम कर दिया. Yeah. Yep. But I think responsible pet parenting is also a big part that is missing. Yes. People think that it's okay for somebody to. I mean, you shouldn't be scared of dogs. It's okay. It's just a dog. It won't bite. It's my dog. बचपन से नहीं काटा and stuff like that. So I feel like we need to be a little empathetic towards people that are not okay with this या उनको Yeah. डर लगता है. Yeah. उनको भी थोड़ा सा ईज करोगे तो आज पहली बार शायद आपके डॉग को टच करेंगे, 2-4 बार में फिर that's how it's happened Comfortable with हो me. जाएंगे. I have Yeah. met so many dogs of my friends and this and that. धीरे धीरे ईज करते 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 now I am absolutely comfortable. But as a kid I was petrified and अगर उसी जैसा 2-4 और इंस्टेंस होता मेरे साथ तो I don't think that I would be able to do what I'm doing today. So yeah, I feel like responsible pet parenting is something that is absolutely missing. So Akash, since you know that we have a company called Paws India and we make a lot of products for pets and some of the products are focused on dealing with separation anxiety. Now when we were building these products, our main thought was कि यार जब आप काम पे जाते हो 8-9 घंटे के लिए आपका डॉग अकेले रहता है. There are a lot of cases कि यार dog is crying in the house, he's howling in the house, he's barking, उसने चीज़ें फाड़ दी है, your house is a mess, he's peed and pooped all over and it's not a good scenario. And I'm sure a lot of pet parents that are watching it right now can absolutely relate to this. Leaving your dog alone in the house is the biggest guilt and the biggest trauma a pet parent has. So how does one A deal with it and B dog के दिमाग में क्या चलता है, उसके साथ क्या होता है? Is anxiety and depression in dogs for real? Anxiety is definitely. Depression भी होता है, but not like how a human deals with depression. Okay. Because what happens is a dog who is, पहले एंग्जाइटी की बात कर लेते हैं. सेपरेशन एंग्जाइटी कैसे होगा, उसको 2 में डिवाइड करते हैं. तो जब कोई जाता है ना, लोगों को लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम दे रहा है, ये तो नुकसान कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा, अकेला नहीं रहना चाहता. वी नीड टू अंडरस्टैंड डॉग्स आर पैक ओरिएंटेड स्पीशीज. सेपरेशन इज नॉट रियल इन पैक. द पैक नेवर सेपरेट्स. Got it. पैक डज एवरीथिंग टुगेदर, Got it. राइट. दे आर अ टाइट निट पैक. अब ऑब्वियसली वुल्व्स जैसा नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग लीनियर हायरार्कीज, बट दे फॉर्म एंड दे वुड वांट टू बी विद द पैक. Yeah. तो जब आप जाते हो घर से बाहर, एक डॉग वो नहीं समझ पाता क्योंकि ही इज लेफ्ट अलोन. Alone. अब भले ही उसका वो घर है, डॉग टू डॉग होता है. कुछ डॉग्स बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल बाय लिविंग अलोन, यू नो. Yeah. Yeah. बट कुछ डॉग्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो आदत नहीं रहती, या बी इन जनरल थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका लो रहता है. सी एन एंग्जाइटी कैन बी आउट ऑफ नॉट फियर नर्वसनेस, बट द एंग्जाइटी कैन जस्ट बी आउट ऑफ लॉट ऑफ पेंट अप एनर्जी. कि मेरा ह्यूमन निकल गया, मैं घर में वैसे ही पड़ा रहता हूँ, कुछ मेरे को काम धंधा है नहीं. बिकॉज डॉग्स लव टू वर्क फॉर देयर फूड, दे लव टू अर्न देयर फूड. Yeah. So I'm just filled with energy. While my human is going out, my human charges me up. बेटा जा रहे, चलो बाय. And the dog is like एकदम पूरा charged up. अब कुछ तो करेंगे, है ना, चार्ज किया है तो. दरवाजे पे गए, दरवाजा बंद. अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, गिर जाओ, ऐसा कंफ्यूजन शुरू होता है. देन
थोड़े टाइम बाद शायद डॉग भौंकेगा। हर एक का डॉग का रिलीज करने का तरीका अलग अलग होता है, है। हाँ। तो कोई भौंकेगा, कोई हाउल करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा सैडनेस एस्पेक्ट है तो हाउलिंग होगा। अगर सिर्फ एंग्शियस है, हाइपर एंग्शियस हो रखा है एंड थोड़ा सा नर्वस हो रखा है तो बार्क कर सकता है, लाउड पिच्ड बार्क, लाइक वूफ 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 वैसे वाले। अगर सिर्फ हाइपर एंग्शियस है एंड ही कुड गो आउट ऑफ बोर्डम डिस्ट्रॉइंग द प्लेस। सो मैं कहाँ निकालूं? तो मैं आऊंगा इधर सोफा पे डिगिंग करूंगा, मैं जाऊंगा किचन में कुछ तो उठाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अ डॉग वुड ओनली रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट ही इज हार्ड वायर्ड टू, which is through barking, howling, running here and there, which is zoomies, or he would go scavenging instinct. जितने instincts है hardware, scavenging instinct करेगा। अगर घर में वैसे कुछ है टॉय वगैरह निकाल के फाड़ने की कोशिश करेगा, प्रे ड्राइव में जाएगा। अगर कुछ चेस करने मिलता है, अगर घर में सपोज लोगों के बिल्लियाँ होती है तो we've seen a lot of time the dog will harass the cat. चेस करवाएगा और भागेगा उसके पीछे, है ना? तो डॉग उसी वे में रिलीज करेगा, वो टीवी ऑन करके नेटफ्लिक्स एंड चिल थोड़ी करेगा। Got it. Getting the Got point? it. Got it. तो ये एंजाइटी इस तरह वर्क करती है, बहुत ही रियल है, ठीक है? सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू क्रिएट हैबिट्स। अब इसका सॉल्यूशन मैं पूरा अभी यहाँ नहीं बता पाऊंगा बिकॉज हर एक केस में अलग अलग होता है, बट द बेस्ट प्रिवेंशन फॉर इट इज डे वन से जब बच्चा आपके घर आता है, बाउंड्रीज जो हमने बात करी वो एक सेट करनी है, सो योर डॉग थोड़ा बिकम्स इंडिपेंडेंट विद इन द हाउस। मेक अ हैबिट, मेक अ रिचुअल दैट ही स्लीप्स ऑन हिज ओन। अगर डॉग अकेला सोना, देखो मैं किसी को बोलता नहीं, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स इन आवर इंडस्ट्री आल्सो हु टेल कि सोफा पे मत बिठाओ, बेड पे मत बिठाओ। आई एम लाइक, डू इट बाय चॉइस, डू इट ऑन इन्विटेशन, बट मेंटेन द बाउंड्री, बट यू कैन डू इट। बट एटलीस्ट एक आदत है ना, जो रात को आप सोने जाते हो, अगर तब डॉग इंडिविजुअली खुद सो पाए तो वैसे ही सेपरेशन एंग्जाइटी के चांसेस और ड्रॉप हो जाते हैं। Got it. लेकिन हमारे डॉग्स हमारे साथ सोते हैं, करेक्ट? आप फिर चाहिए तो बुलाओ, एक इनिशियल फेज होता है ना 6 महीने का, आदत लगा लो, उसके बाद बुलाना शुरू करो, बिकॉज एक बार वो फाउंडेशन बन गया देन ही कैन कोप अप विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट हम वो फाउंडेशनल टाइम पे इतनी लीनियंट रहते हैं सारी चीज़ों को लेके, स्पेशली अगेन द वर्ड बाउंड्रीज, बहुत असर्ट करता हूँ, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। Got it. तो डॉग को क्या पता चलता है, मैं सोता हूँ, मैं इंडिविजुअली खुद के इससे सोता हूँ, तो डॉग फिर क्या करता है, अगर घर में कोई है नहीं, obviously exercise, mental stimulation, those things are there, I'm not going to say that because everyone knows about it कि जरूरत होती है उस चीज़ की। So the dog would come back, थोड़ा बहुत इधर उधर देखेगा, थोड़ा सा अपसेट रहेगा, आके बैठ जाएगा। एटलीस्ट डिस्ट्रक्शन या ओवर एंक्शियस हो जाता है, ओवर स्ट्रेस हो जाता है, वो नहीं होगा, एक जगह पे लेट जाएगा, सो जाएगा। थोड़ा अपसेट रहेगा क्योंकि घर के मेंबर्स नहीं है तो थोड़ा सा बट ही वुड गो फॉर इट। सो वो इनिशियल टाइम से अगर रात को सोने वाली आदत आप बना सको तो इट हेल्प्स अ लॉट इन एंग्जाइटी, है ना? एंड अबाउट डिप्रेशन, डिप्रेशन डजंट वर्क लाइक इट वर्क्स इन ह्यूमन बीइंग्स। डिप्रेशन कैसे होता है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है ना डिप्रेशन को लेके, कि ओवर थिंकिंग हो गया, 10 चीज़ों के बारे में सोचो। डॉग डिप्रेस होता है आउट ऑफ नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आउट ऑफ बोर्डम, आउट ऑफ द कंफ्यूजन एंड chaos that happens there. So if a dog doesn't know what to do and he is on a lower energy side, he would just sit and he would be like that. Got it. Got it. And that looks depression for us. Got it. But a dog can definitely go into that. जैसे पैक मेंबर का किसी का डिमाइस हो गया, ह्यूमन मेंबर हो या बाहर का हो, you will find the dog being a little depressed. Got But it. that is more like he doesn't know कहाँ गए. He does know something is wrong. He can't pick up the scent. उसके सामने अगर हुआ रहेगा तो he would obviously understand that there is no life because they understand life and death. But then he would go through a grieving phase. But it is very short. Got it. Until unless he is living with a family who is constantly mirroring not coming out of the grieving stage. So then the whole environment is that way and the dog will pick it up. But dogs itself move on faster. Got that it. way. Got it. But they do feel all these emotions. But not in the complexities that we have. Simpler way. Got it. And there is confusion and chaos in the back of the head. Now what? So they are trying to find ways. और एक बार एक रास्ता मिल जाता है redirect करने का, then they are back to their regular. So, as a brand, when we were trying to develop products, separation anxiety was one of the. I'm talking from a very personal level. Separation anxiety was one of the first things that I wanted to crack as a pet lover, because I was like कि ये जो 8-9 घंटा है ना जो ये अकेले रहता है डॉग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डॉग को पर्टिकुलरली, और गिल्ट होता है पेट पेरेंट को. दैट गिल्ट इज ऑल्सो रियल, जो पेट पेरेंट भी फील करता है पूरे दिन की, ओ माई गॉड क्या कर रहा होगा घर पे, देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कैंसिलिंग प्लान्स जस्ट टू बी एट होम विद द डॉग एंड स्टफ लाइक दैट. जब मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा, दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि यार
कुछ होना चाहिए जो डॉग को लगे कि कोई साथ है. And that's when we created a product which was a interactive toy. We created a range of interactive toys और वो अपने आप चलते हैं. So some are automatic, some are functional, and what they do is they automatically start, they automatically get turned off, they automatically, with the nudge of your dog, they start playing with your dog. And we, from talking to our customers and from selling the item for about 8 years, we realized that it has really helped a lot of dogs, because for a very simple fact जो आपने अभी समझाया कि उसको वैसे लगता है कि मेरे साथ कोई है, you know, मैंने टच किया, वो टॉय भी भो 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 कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार कोई है घर पे. So we have, with obviously a lot of tech products and a lot of beautiful products coming into the market for pets, we have seen the curve of anxiety and depression slightly go down with the help of other things. But like you said, until and unless the pet parent is not trained and not aware of the things that you are saying कि यार ये exactly इसको हो क्या रहा है, तब तक nothing will work. No products will work without this training that you are talking about. Because ultimately, see, a dog can differentiate between a toy and a human being. Yeah. Correct. तो वो interactive toy भी एक level तक उसको help करेगा. All we do is try to come close. Yeah, you are. So what is happening with the interactive toys? You are engaging. So you are redirecting. जो मैंने बोला ना, confusion and chaos of not knowing what to do. Now he knows what to do. Yeah. But then if the pet parent is not giving time before and after, at least, तो उसका ना धीरे धीरे उसमें से भी इंटरेस्ट हट खत्म होने लग जाएगा. या यू हैव टू यूज इट एट द टाइम ऑफ यूज. ऐसा नहीं है कि तुम मतलब इसको एज अ दवाई नहीं है कोई कि तुमने दे दी, तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं है. या एग्जैक्टली, इट्स नॉट योर रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट योर रिप्लेसमेंट, इट्स अ हेल्प फॉर यू. इट्स अ कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर, इट्स अ सप्लीमेंटिंग फैक्टर, है ना. सप्लीमेंट्री हो गया या सब्स्टिट्यूट हो गया या कॉम्प्लीमेंट कर दिया उस चीज को. बट नथिंग बीट्स योर टच एंड योर टाइम एंड योर एनी टाइम. दैट्स व्हाई वी डिफाइन पीपल टू पीपल दैट कोई भी गेम्स जब आप खेलते हो तो देयर आर टू, ह्यूमन एंगेजिंग एंड सेल्फ एंगेजिंग. तो सेल्फ एंगेजिंग, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग लॉट ऑफ सेल्फ एंगेजिंग, मतलब ना एक पूरा कबर्ड भरा रहता है. बट देन इफ आई आस्क देम कि बाहर कितने बार लेके निकले हफ्ते में, That's where you got the pet parent. हाँ, मतलब जाओ बाहर, एक्सपीरियंस करो, यू विल गेट टू, यू नो. इफ यू कांट, सपोज योर सोसाइटी का प्रॉब्लम है या आपके मेड लेके जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में एक दिन निकालो, वीकेंड पे कहीं चले जाओ आसपास में कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा खाली रहता है, थोड़ा नेचर का एक्सपीरियंस. अपने आसपास कितने सारी जगह हैं विद इन एन आवर्स ड्राइव. सो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू आइदर नो और यू नीड टू हैव दैट विलिंगनेस टू डू इट. Also the word anxiety for dogs comes up the most. I'll take it again. The word anxiety for dogs comes up the most during the Diwali period or during the festive period, जब हमारे ढोल और नगाड़े शुरू हो जाते हैं और fireworks शुरू हो जाते हैं. जैसे अभी गणपति चल रहा था and अब नवरात्रि आएगा, फिर दिवाली आएगा. So now it's a season for Indians to celebrate and close the year, right? तो ये जो period है, जो second half of the year होता है, ये काफ़ी celebratory year होता है. बहुत ढोल नगाड़े बजते हैं, बहुत फायरवर्क्स होते हैं, इंडिया मैच जीत गई, पटाखे बजाओ एंड स्टफ लाइक दैट. सो डॉग्स पर्टिकुलरली ये वाला जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बहुत लाउड नॉइजेज एंड फायरवर्क्स एंड स्टफ होते हैं, तो दे गेट वेरी वेरी बॉदर्ड. व्हाट इज द राइट वे टू टैकल दिस? बिकॉज आई हैव सीन द मोस्ट अमाउंट ऑफ वी सीन गूगल ट्रेंड्स एंड सर्चेस कि यार ये टाइम पीरियड पे ना एक डॉग एंजाइटी का सर्च ऐसा ऊपर जाता है कि वो छुप के बैठ गया है कहीं पे, डॉग आपका बाहर नहीं निकल रहा है, वॉक्स पे नहीं जा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट. व्हाट इज, just to help our pet parents understand, because I'm pretty sure they've been dealing with this. आप इंडिया के कोई भी पार्ट में रह लो, आप ढोल से नहीं बच सकते हो, आप फायरवर्क से नहीं बच सकते हो, मतलब इट्स गोना हैपन एट सम पॉइंट इन टाइम. सो हाउ डज वन डील विथ this when they have a pet at home that's absolutely scared? So इसमें ना there are like a lot of individual permutation combinations and variations of various strategies are used for different cases. But अगर एक general thumb rule बताऊं तो firecrackers या loud sounds, it stimulates thundering. Got it. Thundering एक nature का part है which creates a sound, a frequency that is so loud, and at times it also has certain frequencies before the thundering can be heard by us. वो animals सुनते हैं. So उनको क्या magically telepathically नहीं समझ में आता है. It's their senses that tells them, and then the dog would go into survival mode, which is fight flight. Got it. एक naturally hardwired response होता है कि भाग के अब हमें छुपना है क्योंकि बारिश आने वाली है. That's how we are hardwired. अब ऐसे ही कुछ sounds stimulate होते हैं. Got it. है ना, या सिमुलेट होते हैं, जो भी वैसा सिमुलेटरी वे में ढोल नगाड़े बज रहे हैं या फिर फायरवर्क्स बज रहे हैं, वर्स्ट थिंग. सो देन द डॉग गोज इनटू सर्वाइवल. Got it. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या करना है.
Got it. And the dog would try to run, hide, ye, wo, falana. Again, not every dog. There are a lot of confident dogs That are okay. who are okay with it. There are a lot of dogs who are scared of thunderstorm. Firecrackers के साथ they are still okay. वो उसमें भी selectiveness है. इसलिए मैंने बोला बहुत सारे variables है इसमें. But जो भी इस चीज़ को लेके डरते हैं या जिनकी एंग्जाइटी पीक होती है, एंग्जाइटी क्या है? अगेन इट्स एन आउटकम ऑफ व्हाट द डॉग बिकम्स सुपर नर्वस एट दैट टाइम. Got it. बट फॉर द डॉग टू, इसमें एक थंब रूल है, वही थंब रूल बताता हूँ. फॉर द डॉग टू डू एनीथिंग अबाउट दैट स्ट्रेस एट दैट स्टेज, ही नीड्स टू हैव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी Got in it. him. Because any emotion and उसका reaction is directly proportionate to how much energy the dog has. Got it. Yeah. है ना? You're right. अगर लेवल 8 का एंग्जाइटी हो रखा है फॉर सम रीजन, नर्वसनेस, फियर और एनीथिंग, एंड लेवल 10 पे एनर्जी है, तो ये खींचेगा और वो उतने लेवल 10 पे उसका जाएगा. Got it. है ना? बट अगर लेवल 2 का एनर्जी है, ही इज नाइसली फिजिकली मेंटली हैप्पीली टायर्ड, वो लेवल 8 अपने आप 4 पे आ जाएगा. Okay. And बहुत then you ज़्यादा have to- escalate नहीं होगा. ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा. दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी देन टू फिर डू ऑल द प्रिवेंशन. खिड़कियाँ बंद कर दी, ईयर मफ्स लगा दिए अगर ज़रूरत है तो, कुछ अरोमा जैसा कुछ कर दिया, अरोमा थेरेपी जैसा कुछ कर दिया, पास में लेके आराम से बैठे, जब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया लीश पे रखे, थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर दिया, फिर पास में ले लिया, मसाज किया. नॉट व्हेन द डॉग इज एब्सोल्युटली स्कैर्ड. Absolutely, yeah, yeah. वो डरा हुआ रहता है और हम उसको और ऐसा पकड़ के ना ऐसे मसाज करते हैं, पेटिंग करने लग जाते हैं. डॉग इज लाइक मेरे को बता क्या करना है, मेरे को और ट्रैप मत करो. तो आई ऑलवेज टेल पीपल वेरी सिंपल थिंग, थोड़ा इंटरप्ट कर दो स्टेट ऑफ माइंड को बाय रीडायरेक्टिंग. Because that time the dog is not willing to also take food, that time the dog is not willing to play with a toy. So just let the dog walk around the house, थोड़ा ट्राई करो, साउंड जितना कम कर सको, और फिर थोड़ा रिडायरेक्शन हो गया, पास में बिठाओ, मसाजेस करना शुरू करो, मसाज करो, डिग योर फिंगर्स और थोड़ा डीप मसाज करो. दे लाइक इट. हेड पे ऐसा थंब रोटेट करो, कान की यहाँ पे नीचे थंब रोटेट करो, दे विल रिलैक्स. Got it. Right. बट वहाँ पे एक ही है कि बिकॉज फायर क्रैकर्स एंड ऑल इट्स सो एक्सट्रीम, you won't get 100% result Yeah. for dogs who have extreme sensitivity to it. You You'll can have to reduce it let to it- certain extent, but you can't get 100% कि डॉग एकदम ही हैप्पी गो लकी हो जाएगा, फायर क्रैकर बजेगा और ये खुश हो जाएगा, वैसा नहीं. वो डॉग टू डॉग सिलेक्टिव है, बट यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग इट डाउन. Got it. यू कैन Got डेफिनेटली it. ब्रिंग इट डाउन. So apart from all of these aspects that play a lot of play a very important part in the physical factors of the dog, nutrition is also one part that plays a really important Absolutely. important game here, right? I don't know, tell me if I'm wrong, but I feel like most of the dogs that I see, when I say most, I'm saying 6 on 10 maybe, most of the dogs that I see, to my eye, I think they seem overweight या ओवरवेट होने वाला है, या जस्ट ब्रिम पे है कि मतलब ये कभी भी मोटा हो जाएगा कुछ टाइम में, यू नो. एंड दिस इज यूजुअली अबाउट डॉग्स अबाउट 4 years 5 years ओल्ड. यहाँ से ओवरवेट का इशू शुरू हो जाता है. एंड पहले तो कुछ टाइम पहले, मतलब 4-5 साल पहले तक तो ये सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर्स और लैब्स में दिखता था, काफ़ी कॉमन. बट अब ये एकदम छोटे शिट्जूज भी, वी आर सीइंग ओवरवेट शिट्जूज, ओवरवेट बीगल्स हु आर लाइक really small creatures, you know, and they are overweight cocker spaniels. So overweight, I think, is one very big health condition that we are facing for dogs in general. I don't know about cats, but dogs, I feel like half of their issues, because we also make health supplements, half of the issues that the dogs face are because of them being overweight. It could be arthritis, it could be, I mean, everything is leading to cancer nowadays, but it could be arthritis, it could be cancer, it could be not walking enough, it could be not having right mental conditions for the dog to survive. ब्रीदिंग कंडीशंस भी हो जाते हैं उसकी वजह से. There's a lot of things, but what do you, and there is a lot of physical illness also that's happening, but I'm just picking right now to speak with you overweight का जो issue है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ, because I feel like वो एक dog को जीने में ही उसकी बहुत तकलीफें आ जाती है, you know, just walking around and doing basic things जैसे कि normal dogs करते हैं. एक बार तुम overweight हो जाते हो तो तुम आधी चीज़ें, वो dog भी जैसे हमारा होता है कि हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है, आधी चीज़ें हम नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, वैसे ही सेम डॉग्स का भी है, आधी चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर पाते, मतलब खेल नहीं पाते, भाग नहीं पाते, एंड अर्थराइटिस तो सबसे पहले हो जा रहा है आजकल डॉग्स को. सो हाउ कैन अ पेट पेरेंट विदाउट, इसी सब हमारे जैसे वो नहीं है, मतलब इतना घुसे हुए नहीं है इस चीज़ के अंदर. एवरीबडी इज नॉट गूगलिंग एंड फाइंडिंग आउट एवरीथिंग ऑन चैट जीपीटी. सम पीपल आर जस्ट विंगिंग इट, सम पीपल आर जस्ट लिसनिंग टू देयर वेट, या अपने नेबर का सुन लिया, किसी और का सुन लिया. सो फॉर अ लेमैन हु लव्स द डॉग एंड लव्स फीडिंग द डॉग, और अपने प्लेट से भी हर मील में उसको खिलाते रहता है,
for a layman, how can he manage how can they manage their dog's nutrition? Yeah. कैसे हम एक इंडियन पेरेंट को समझाए कि अपने प्लेट से खाना देना बंद करो, अपना ब्रेड देना बंद करो, और अपनी मिठाइयाँ और जो भी खाते हो आप वो सब देना बंद करो अपने डॉग्स को, और घी लगी हुई रोटी खिलाना बंद करो, और जो उनके न्यूट्रिशन का, जो उनके लिए न्यूट्रिशनली राइट खाना है आप उनको वो प्रोवाइड करिए, अदरवाइज XYZ कैन हैपन. सो हाउ डज अ लेमैन अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन फॉर डॉग्स? आई थिंक अगेन यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ रहा है बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट कमिंग अप एंड there's a lot, yeah. there are a lot and a lot of people are actually approaching nutritionists. नहीं तो otherwise earlier it was all like wet nose all type. Yeah. वहाँ पे जाओ वहीं से सब सीखो, नहीं तो अपने पड़ोसी से सब सीखो. हाँ. वैसा होता था. हाँ. तो that factor is happening. Apart from that we have you know a thumb rule again for this कि जब भी आप कोई डॉग घर में लेके आते हो आप 3% ऑफ देयर बॉडी वेट उसके ग्राम्स में उसका खाना होना चाहिए. सो 10 किलो का है तो 300 ग्राम डेली इनटेक होना चाहिए. एक्टिव है बहुत ज़्यादा, बहुत वॉक्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, ट्रैक्स बिक्स करते हो हर हफ्ते, बहुत लंबा वॉक्स, तो 4%. तो 300 या 400 ग्राम 10 किलो के डॉग के लिए होना चाहिए. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? अब अपना भी डाइट, इंडियन डाइट इज कार्ब बेस्ड ज़्यादा होता है, करेक्ट, बट स्टिल फॉर अस ह्यूमंस वी स्टिल अंडरस्टैंड हमारा क्या नीड्स है. फॉर अ डॉग वोंट नो एग्जैक्टली ना. तो बैलेंस करने के लिए पीपल प्रोवाइड किबल्स. ना आई फॉर वन प्रिफर फ्रेश फूड ओवर किबल्स, बट आई ऑल्सो टेल पीपल की एक हैबिट रखो, क्योंकि कब कुछ नहीं अगर रहे तो आपका डॉग वो तो खा ले तो इट विल बी गुड, मतलब सेफ्टी के लिए. And now there are various varieties also, various kibbles, brands and everything, better products have come up. तो आप जब ये देते हो ना, तो मैंने लोगों का एक ट्रेंड देखा है. चिकन राइस अभी बहुत कॉमन फीड है डॉग का, लेकिन चिकन इतना, राइस इतना, है ना. तो हम फिलर दे रहे डॉग को. जरूरी नहीं है कि हर बार वो राइस से मोटापा आएगा, बट सिर्फ कार्ब वो भी इतने क्वांटिटी में उसके बॉडी को एंड दे वर्क डिफरेंटली, दे नीड प्रोटीन इन देयर बॉडी. एक टाइम एक इंसान हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी काम चला सकता है. फॉर अ डॉग इट्स नॉट आइडियल, ऑल्दो वी कैन क्लासिफाई देम एज omnivorous. They need their carnivore side to be fulfilled, which is through animal meat based protein. Right. We've seen नए स्टडीज भी आए कि dogs lead a better life through meat based protein rather than plant based protein. Correct? India has the most number of veg dogs. I hope you know that. I know. तो वो एक फैक्टर है कि हमें प्रोटीन का अगर कंटेंट हमने बढ़ा दिया खाने में. राइस तो आई हैव मेट विद सर्टेन न्यूट्रिशनिस्ट, उससे कि राइस डालने की भी जरूरत नहीं, जस्ट फिलर है वो. सिर्फ चिकन और वेजीज डाल के दे दिया और कुछ हेल्दी फैट्स उसमें डाला, जैसे घी या समथिंग, और कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी है, एंड इट्स गुड इनफ. वो एक फैक्टर कि प्रोटीन ऐड करो ज़्यादा, अपने आप आपको लगेगा फिलिंग है डॉग के लिए, तो आप ये नहीं, लेकिन वो मोटापा नहीं देगा. सेकंड, ओवर फीडिंग करना बंद करना होगा. मतलब वी हैव टू लिटरली नाउ, obviously it's given me a thought. अभी when you were talking to me I was thinking about a content behind कि इसके ऊपर क्या और नया बना सकते हैं. तो we need to ना give negative, जो अपन बात कर रहे थे ना पहले, नेगेटिव मार्केटिंग, ये हमें उन लोगों के लिए दिखाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे कि देखो ये होगा ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा. तो नाउअडेज आई टॉक टू पीपल ना, मतलब मैं बहुत प्यार से बात करके देख लिया इस टॉपिक को लेके. स्पेशली व्हेन आई एम सीइंग दैट हैपनिंग ना, आई डायरेक्टली गिव देम एन अल्टीमेटम. प्लेट से मत खिलाओ, अल्टीमेटम दे देता हूँ. ये होगा तो डायरेक्ट आपने 3 साल 4 साल काट दिए डॉग के, और ये कुछ भी हो सकता है. मेरे को कॉल मत करना, वेट के पास जाके भागना मत. करना है तो करो, अल्टीमेटम दे देता हूँ. एटलीस्ट उससे ना 80% लोगों को मैंने देखा है सुन डर जाते हैं. तो जहाँ पे थोड़ा सा यू ऑल्सो नीड टू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल ना, कहाँ थोड़ी सी खिंचनी है. यार वो प्यार की वजह से ही होता है, प्यार की वजह से ही होता है. That's what I'm saying. It's not ill intended. It's not. But that intention is not aligning with what is needed. What is needed, especially for the dog's health, right? Yes, and it is very necessary. Very necessary. Gabapentin एक दवाई होती है. GABA एक गामा आर्बिट्रिक एसिड करके होता है, जो हमारी बॉडी बनाती है. कहाँ से? यहाँ से, गट से. वहीं पे सेरोटोनिन ऑलमोस्ट 70% वहाँ पे बनता है, गट माइक्रोबायोम से. और गट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, राइट, थ्रू वेगस नर्व. सो वो मूड स्टेबलाइजर्स है, वो पेट में बनते हैं. गट हेल्थ अच्छी नहीं, हमारे लिए भी है वैसे. हमारा एग्जैक्ट नंबर मेरे को शायद पता नहीं होगा, बट उनका वो 70% इज देयर.
70% production of serotonin is happening there. GABA is also produced in our stomach. मतलब उनके पेट में So गट if the में gut बनता है. health is not right, Gut it health is not right, then it can mess up with this also ना. क्योंकि अगर वो insecurity की तरफ जाएगा, anxious होगा, तो उसको drop करने में उसको ज़्यादा time ज़्यादा लगेगा. time लगेगा. If the gut health is bad, which goes for us also. It If goes our for gut health us. is not good, we are often irritated, we are often agitated, we quickly lash out. Yeah, Correct? yeah. So it's very essential, very important. Got it, got it. I think so. This is a lesson for anybody that is feeding their dogs from their plate, and there's a lot of us. But yeah, it's absolutely not required. It's absolutely Absolutely. unnecessary and creates a very long-term negative impact on your dog's health, जो आपको अभी दिखता नहीं है, but eventually. So Akash, we spoke about dog behavior, dog training, dog nutrition, but there is a very important topic that I wanted to discuss with you, which is bothering the entire nation at once, which is the stray dog ban in Delhi. So as you guys know that the Delhi government had ordered all the strays of Delhi, which is approximately 3 lakh plus dogs, to be put in shelters. So as Akash, you were there with them and you've seen what exactly went down. I would love for you to help me and the audience understand कि उधर exactly क्या हुआ, ये रूल क्यों आया, उसका क्या रीज़न था, और आज की डेट पे क्या फैसला है गवर्नमेंट का. ओके सो पहले तो मैं दिल्ली में नहीं था ऑन ग्राउंड वहाँ पे, बट वी वर एक्टिवली वर्किंग हियर बिकॉज वी बिन वेरी एक्टिव एडवोकेट ऑफ वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग अपना ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट. सो हाउ वी कैन एमिकेबली ब्रिंग इन को एग्जिस्टेंस उन मैटर्स पे, और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर्स होते हैं उन पे हम बहुत एक्टिवली काम करते हैं. So the whole situation that had happened was actually taken into a suo motu case. वो जनरली तब होता है ना जब एक जजेस का जो बेंच बैठता है वो खुद ही इंटरनली दे कैन टेक अप अ मैटर एंड दे कैन गिव अ जजमेंट. तो वो 2 जज का बेंच था जिसमें उन्होंने वो मैटर आगे लिया और उन्होंने ये जजमेंट पास किया कि ये ऐसा ऐसा मैटर है. कुछ दिल्ली में कुछ बाइट इंसिडेंट हुआ था जिससे एक बच्चे की डेथ हुई थी रेबीज बोल के, बट बाद में ये पता चला कि वो रेबीज से नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था. बट एनीवे दैट मैटर वाज टेकन अप एंड दे सेड कि सबको ये करो, रिलोकेट करो, शेल्टर में डालो. अब टेक्निकली जब ABC रूल्स बने अर्ली 2000 में 2001 में टू बी प्रिसाइज, एंड दैट्स व्हेन रिलोकेटिंग डॉग्स फ्रॉम देयर टेरिटरी वाज बैंड. Okay. So it directly went against the ABC rules, it directly went against the constitution also, and सबसे बड़ा चीज़ था the impracticality of it. Yeah. क्योंकि we ran the numbers, 3 लाख कुत्ते अगर दिल्ली NCR के हैं तो 8 से 10 हज़ार करोड़ का बजट जा रहा था. So one time cost of the whole project. उसका रिकरिंग कॉस्ट अलग. पूरे देश के 6.5 करोड़ अगर आप देखोगे उस लॉजिक से, तो द नंबर वाज गोइंग सम 165 लाख करोड़. ये पैसों का हम क्या क्या कर सकते हैं. दैट्स माई पॉइंट, राइट. सो उससे ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत सारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया. एवरीवन अक्रॉस द नेशन दे ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. वी ऑल्सो हैड हेल्ड सम प्रोटेस्ट हियर. हमारे यहाँ पे 3 हुए थे, विच वॉज फर्स्ट वॉज इन बैंड्रा जो हमने करा था विद अ कपल ऑफ अदर NGOs एंड पीपल वर देयर. A lot of celebrity traction was also there. A lot of support हुआ. फिर उसके बाद आज़ाद मैदान पे एक और हुआ था, फिर अंधेरी में एक हुआ था लोखंडवाला सर्कल के यहाँ, एंड देन थाने में भी हमने किया था. तो सिचुएशन ऐसी थी कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे व्हेन वी वर प्रोटेस्टिंग द फर्स्ट प्रोटेस्ट बैंड्रा, उसी टाइम पे the CJI, the Chief Justice of India, he said he'll take the matter into consideration, and he set up a 3 judge bench to discuss this matter. और उन्होंने वो 2-3 दिन के डिस्कशन करके मतलब उसी दिन हुआ जो भी हुआ, 15-20 मिनट का चला उनका कॉन्वर्सेशन विद द लॉयर्स, एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर कि अब क्या आगे निकलेगा. क्योंकि द हियरिंग वाज फॉर स्टे, इंटरिम स्टे का हियरिंग था, वेयर यू ब्रिंग अ टेम्पररी स्टे टू समथिंग लाइक दिस एंड देन वी आर ओपन टू डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट एंड देन दे वुड प्रोसीड फॉरवर्ड. तो इंटरिम स्टे एक मुझे लगता है अगले विद इन अ वीक्स टाइम आ गया इंटरिम स्टे. सो व्हेन वी डिड द प्रोटेस्ट इन थाने, उसके एक दिन पहले वो स्टे ऑर्डर आ गया था. वी हाउएवर स्टिल वेंट अहेड विद इट बिकॉज वी हैड क्रिएटेड अ 100-page गाइड जो मेरा 1 साल से बनाया हुआ है, विच शोज ऑल द सॉल्यूशंस एस्पेक्ट कि आप कैसे ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो. उसमें पहले स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स में दिया है कि डॉग्स क्या कहाँ से आए हैं, सड़क पे क्यों है, कैसे इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एंड देन वाई डॉग्स बिकम अग्रेसिव, वाई दे बाइट. ये कुछ बेसिक से पहले कुछ चैप्टर्स में शॉर्ट में है, एंड देन वी हैव
प्रिवेंशन ऑफ डॉग बाइट्स, देन गाइडलाइंस फॉर डॉग लवर्स, गाइडलाइंस फॉर नॉन डॉग लवर्स, बच्चों को क्या करना चाहिए, यू नो, लोगों को बेसिकली कैसे, गाइडलाइंस फॉर सोसाइटी, करेक्ट. सो वी हैव ऑल ऑफ दिस रिटन डाउन. ऑब्वियसली देयर वाज नो, यू नो, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया था उस चीज़ को आगे करने के लिए. मैंने भी पब्लिश नहीं करा था बिकॉज वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट इट. Got it. So now what we did was, because in the light of recent events, we started bringing it out to people. अब वो पब्लिशिंग में जाएगा, बट वी आर येट अवेटिंग टू हियर फ्रॉम द CMO, क्योंकि वहाँ पे हमें उनके मीटिंग करके उन्हें ये प्रेजेंट करना है. बिकॉज वी वर टोल्ड बाय द लॉयर्स एट सुप्रीम कोर्ट कि आप इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग थाने में करते हैं ग्राउंड लेवल पे, एट अ वेरी लोकल स्केल, एट अ वेरी स्लो पेस, बिकॉज पूरा 3-3 जगहों पे मेल जाता है, म्यूनसिपैलिटी को जाता है, मेरे जो AWO उनके पास जाता है, फिर मेरे पास आता है, वी क्रिएट एंड वी डू एन अवेयरनेस सेशन, करेक्ट, वी डू सेंसिटाइजेशन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इफ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ मास लेवल, along with the ABC program, which is jo vaccination sterilization, which is absolutely needed. So this can be, we can bring an amicable solution, and almost 70 to 80% problem अगले 3 से 4 साल में खत्म हो जाएगी. Got it. करेक्ट. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम CMO का भी वेट कर रहे हैं कि उधर से आ जाएगा तो वी कैन स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. एंड देन माय प्रपोजल वुड बी कि आप ये गाइड लेके चाहिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोई स्कीम में रन करके आप सारे स्कूल्स में डाल दो. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पब्लिशिंग इट. इफ इट डजंट वर्क आउट देयर, देन आई विल बी कमर्शियली पब्लिशिंग इट, एंड देन वी विल टेक इट अहेड ऑन आवर पर्सनल नोट, उसका PR. Got it. तो again, so that is something that we are doing in ground level. Now talking about Supreme Court, stay order आने के बाद they released a few things कि dogs को नहीं डालेंगे अभी फिलहाल. ABC is back in action, जैसा था वैसा. फीडिंग स्पॉट्स जहाँ हैं वहीं फीडिंग होगा, बट अभी वो ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि फीडिंग स्पॉट है कहाँ. गेटेड Feeding तो कहीं कम्युनिटीज पे भी हो में, रही है. हाँ, गेटेड कम्युनिटीज में स्टिल यू कैन डिस्कस इंटरनली, यू ऑल कैन क्रिएट फीडिंग स्पॉट्स. गेटेड कम्युनिटीज में स्ट्रे डॉग्स ही नहीं है. नहीं, वो तो बहुत सारे जगहों पे है ना. हार्डली, मतलब अगर, लेकिन गेटेड कम्युनिटी का पॉइंट ही वो तो एक आधा अडॉप्ट कर लिया, बट गेटेड कम्युनिटीज अंदर स्ट्रे डॉग को कहाँ आने दे रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर गेटेड कम्युनिटीज. हाँ, लाइक, बट देयर आर प्रॉपर गेटेड कम्युनिटीज व्हिच हैव स्ट्रे डॉग्स इनसाइड. अब आप लोधास में दे आर जाओ, टेकिंग केयर ऑफ देम. दे आर टेकिंग केयर ऑफ, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज अभी एक्टिविज्म इतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे है कि दे डोंट अलाउ रिलोकेशन. जिन्होंने पहले से ही निकाल के रखा है, एंट्री नहीं दी, वो बात अलग है. प्रॉब्लम कहाँ से आता है? देखो, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग होती है, वर्कर्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, बिकॉज दे लिव अराउंड बिल्डिंग ह्यूमन. बन जाती है, वो वहीं रह जाते वो हैं. वहीं रह जाते हैं. वो लोग क्यों खाना खिलाते हैं? जनरली उनका काम इजी हो जाता है. रात को जब आंख लग जाती है, कुछ भी इंट्रूजन होता है, तो डॉग्स भले ही डरता रहेगा, भौंक के अलार्म तो दे देगा, राइट है ना. हाँ, तो उनका भी एक मदद हो जाता है. लेकिन ये निकल जाते हैं, वो रह जाते हैं. हाँ, गॉट इट. सो वहाँ से वो प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू होती है. बट देन ऑब्वियसली सोसाइटीज़ के लिए एक बना के रखा हुआ है, म्यूनसिपैलिटी ने बोला हुआ है फीडिंग स्पॉट्स करो, ये करो, वो करो. प्रोसेस नहीं हो रहा है कुछ भी उस चीज़ का. अगर नहीं है गेटेड कम्युनिटी में डॉग तो बात अलग ही है. मुद्दा है बाहर, जो बाहर करते हैं, बाहर के डॉग्स का जो ध्यान रखते हैं, उनके फीडिंग स्पॉट्स तो डिफाइन ही नहीं है. तो उस चीज़ पे बवाल मचा पड़ा था. उसके बाद इन दैट स्टे ऑर्डर दे हैड मेंशन्ड कि अब सबके पेटिशन सुने जाएंगे. Those who had approached the bench, they have to either pay 25,000 as an individual or some 2 lakh I was just going to rupees. come to that. There's some amount that is requested from Yes. any dog lover Yes. जिसको तकलीफ है ये एक्ट से कि तुमको 25,000 भरो तुम और आके हमारे सामने बैठो and then we will listen to you. Yes. So for you to be heard in the court, you have to either go as an individual or as an organization. Organization कुछ 2 लाख है. I totally back it because I'm sure there would be thousands of petitions which would have gone there and even more. तो प्राइस पॉइंट डालने से जितने जेन्युइन petitions रहेंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि 99% if you see a lot of these things would have a lot of similar matter in it. ठीक है. तो it was pretty बट उसमें मिसकंसेप्शन हो गया, कम्युनिकेशन एरर हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ. लोगों को लगा और लोगों पे ये कर रहे थे कि अब तुमको फाइन लगेगा उतना, तुम खाना खिला रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं था. नहीं वो हाँ, लोगों ने बीच में व्हाट्सएप पे ये बात फैली. व्हाट्सएप स्कूल. या सो दैट इज दैट. वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज समथिंग विच probably drop down the load of the court also, कि कितने petitions जाएंगे, कैसे जाएंगे. But again, it's an individual choice. So we as an individual, we are doing one petition filing. तो I had a very good support from one of my old client जो खुद भी advocate है अपने बॉम्बे हाई कोर्ट में. शी हैड कनेक्ट, सो उनके थ्रू मेरा वहाँ पे इंटरनल कॉन्वर्सेशन चल रहे थे. राइट. तो नाउ वी आर फाइलिंग थ्रू देम. उनके एक लॉ फर्म है,
उनके थ्रू हम फाइल कर रहे हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल द सॉल्यूशंस, Got वी आर it. नॉट ब्रिंगिंग टू द टेबल द प्रॉब्लम्स पता है, Hmm. नंबर्स भी डाले, बट जो चीज़ें है जैसे ABC करना है वो तो है, लेकिन ये बाइटिंग का क्या, तो वी हैव क्रिएटेड अ 3 स्ट्राइक प्रोटोकॉल. अब मैं उसके डिटेल्स यहाँ पे नहीं ज़्यादा शेयर कर पाऊंगा क्योंकि केस अभी आगे पूरा चलेगा, I understand. बट वो कुछ चीज़ों के ऊपर हमने वर्क किया, कुछ प्रपोजल्स बनाए. अभी वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू गेट इट वेरीफाइड. ड्राफ्ट ऑलरेडी कल आ चुका था, तो अब ये हफ्ते में आई थिंक वी शुड बी डन विद द फाइनल ड्राफ्ट एंड इट वुड गो टू द Okay. एपेक्स कोर्ट, एंड फिर वहाँ से शुरू To होगी. sum it up, what has happened is दिल्ली में कुछ बाइट्स के केसेस और कुछ अग्रेसिव डॉग्स के केसेस रिपोर्ट हुए. One after the other, simultaneously कुछ cases report होने के बाद this was presented in the Supreme Court, wherein the court said कि okay, stray dogs problem है हमारी society के लिए, problem है हमारी life और upbringing और बच्चों के लिए जो रास्तों पे खेलते हैं and stuff like that. तो हमें ये stray dogs basically एक threat है हमारी community को, और हमें इन stray dogs को अपनी जगह से निकाल कर एक अलग जगह relocate करना चाहिए, which is a shelter. अब shelter में problem ये है कि आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली एक शेल्टर में जाके देखा है कि शेल्टर एक्चुअली दिखता कैसा है. बट एक शेल्टर में हज़ारों कुत्ते आप रख सकते हो, बट यू नीड अ वेरी ह्यूज फैसिलिटी फॉर दैट. यू नीड डेली, मतलब कितने टन का खाना लगेगा एक दिन में. अगर आप 100 मान लो 100 डॉग्स हैं, 100 डॉग्स का एनजीओ है, आपको कितना किलो खाना लगेगा ऑन अ डेली बेसिस. और आप शेल्टर में जब 100 डॉग्स को डालोगे तो वो 100 डॉग्स को मैनेज कौन करेगा. There were several problems that obviously kept on coming up, and then all the dog lovers and feeders and pet parents, everybody again got activated and charged and said कि यार ये stray dogs जो है ये हमारे एरिया के कुत्ते हैं और हमारे एरिया के डॉग्स हैं, और हम इनका ध्यान रखते हैं और हम इनका ध्यान रख लेंगे. सो ये कॉन्फ्लिक्ट है, राइट, अगेंस्ट द कोर्ट एंड विद द पेट पेरेंट कम्युनिटी और विद द एनिमल लवर कम्युनिटी. नाउ व्हेन यू एंड आई डिस्कस, अगर हाइपोथेटिकली हम देखें कि चलो मान लो शेल्टर बना दिया तुमने शेल्टर बनाया, तुम दिल्ली एनसीआर खुद ही कितने किलोमीटर का रेडियस है, तुम शेल्टर ए कहाँ बनाओगे, बी इसको फंड कौन करेगा, और सी इसकी देखभाल कौन करेगा, डी वो जो दिन में 3 टाइम इसका खाना जाता है. हमने मिड डे मील के केसेस तो बहुत सुने ही है ऑब्वियसली. दिन में 3 टाइम जो डॉग्स को खाना हमें देना पड़ेगा, 2 टाइम पकड़ लो, 2 टाइम हमने जो डॉग्स को खाना देना है वो खाना कहाँ से आएगा, प्लस जो अलग जो एक्टिविटी करनी है डॉग्स को, जो अलग अलग रखना पड़ेगा सारे डॉग्स को. वरना 100 डॉग्स अगर आप एक रूम में छोड़ दोगे तो आधे तो लड़ के मर जाएंगे, राइट. सो यू हैव टू ऑब्वियसली कीप वन टाइप ऑफ डॉग सेपरेट, वन टाइप्स ऑफ डॉग सेपरेट, और वो सब. एंड looking at such a big scenario, and so many protests that you were a part of, that a lot of people in this community were a part of at least one protest that happened in their area. हम सब निकल के आए रास्तों पे और हमने obviously revolt किया इस particular rule के against, and फिर stay लग गया जैसे आप बोल रहे हो. And now we are looking at solutions as people and the Supreme Court together. We are looking at solutions कि भाई ये problem है और ये solution तो नहीं है. रीलोकेशन तो सोल्यूशन नहीं है ऑब्वियसली, और रीलोकेशन आप दिल्ली में करोगे, फिर बॉम्बे का क्या, बैंगलोर का क्या, बाकी शहरों का क्या, बाकी जगहों का क्या. इट विल अगेन बी अ रिपल इफेक्ट कि एक जगह कराया आपको तो दूसरी जगह भी कराना पड़ेगा, तीसरी जगह भी कराना पड़ेगा. नहीं, वो एक बार उधर से ऑर्डर, नाउ दे हैव सेड दैट वंस दिस ऑर्डर इज पास्ड, फाइनल अब जो भी आएगा दैट विल बी इंप्लीमेंटेड नेशनवाइड. या बिकॉज एक सिटी में कुछ भी इंप्लीमेंट करे कोई मतलब नहीं है. और यू आर डूइंग अ पायलट विद द लाइफ ऑफ 3 लाख डॉग्स, राइट. यू आर डूइंग अ पायलट प्रोजेक्ट विद 3 लाख डॉग्स, एंड अगर चल गया, तुमने कर लिया मैनेज, तो नेशन वाइड इंप्लीमेंट होगा. नहीं हुआ तो ये 3 लाख डॉग्स का कुछ पता नहीं है कि कहाँ है. एग्जैक्टली. ये भी बहुत कंसर्न रेज हो रहे थे कि ये डॉग्स को जो पकड़ के ले जा रहे हैं, आई थिंक पहले कह रहे थे कि स्टेरिलाइजेशन और न्यूटर के लिए लेके जा रहे हैं, बट देन आई डोंट नो इफ द डॉग्स कम बैक. बहुत सारे डिस्प्लेस हुए ना डॉग्स, बहुत सारे डिस्प्लेस हुए डॉग्स. फिर रोहिणी में एक बीच में प्रॉब्लम हो गया था, भर के डॉग्स रखे थे स्टेरिलाइजेशन सेंटर में. तो बहुत सारे मैटर्स हुए दिल्ली में. बट सी, आवर स्टैंड हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लियर. वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पीपल. वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इन कि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, सेंटर ग्राउंड पे आके हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू से, लाइक यू मेंशन्ड वन पॉइंट कि पेट पेरेंट्स, अपना पेट पेरेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, जो पेट लवर्स है, डॉग लवर्स है, वो बोल रहे हैं कि रख दो, हम देख लेंगे. लेकिन फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, जो मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ वो बराबर से नहीं उठा पाते. एंड अगेन, इफ़ यू गो ऑन टेक्निकल एंड लीगल टर्म्स, इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई कुत्ता काटता है,
इट इज टेक्निकली द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल. सो अभी जो कोर्ट में फाइट गई है आफ्टर दिस पेटिशन फाइलिंग एंड व्हाटएवर विल बी डिस्कसिंग नाउ, इट विल बी इन द कोर्ट रूम. And we have to make sure that we present it in the right way. So that's why we are trying to implement जितना जल्दी इधर कर सके, ताकि एक precedent set हो. Right. अभी जो भी हम इसके रिलेटेड वर्क करते हैं हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि वो सब वहाँ पे यूज हो. एंड we can come to a solution which is, see, we always have a narrative that this is not for dogs, this is for people. Yeah. Only then people come to the table to have a discussion. The moment I say it is for the dogs, right, वो डिस्कशन के बाहर निकल जाता है, क्योंकि पीपल बिकम सो एंग्री एंड एजिटेटेड एट टाइम्स. एंड ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक डॉग से खतरा नहीं है, बट obviously if I have kids and my kids are going and बार बार वहाँ पे dogs chase कर रहे हैं, it's not a very healthy environment to be in. And I as a layman who doesn't like dogs, or I'm neutral at least, right, मेरा dislike आना चालू हो जाएगा. और on top of that, if somebody tries to come to tell me कि तुम गलत कर रहे हो, वो फिर हम उसे नेगेटिव वे में नहीं देख सकते. Rather what we can tell them is what can we do to solve this together. Yeah. Because by law अभी यहीं से हटने नहीं वाले. Talking about coexistence, I don't know why. Indian government as a whole should actually look at कि भाई ये सब है तो हम coexist कहाँ और कैसे कर सकते हैं. You won't believe जो मास अवेयरनेस का प्लान बना है एक प्रपोजल में मैंने, उसमें पोलियो का एग्जाम्पल दिया. 2 बूंद जिंदगी के कैसे एक कैंपेन था. रिक्शा वाले से लेके नेता अभिनेता सब लोगों ने वो कैंपेन रन करा. करेक्ट. तब जाके लोगों तक बात पहुंची ना कि वो टीका कराना है. करेक्ट. यू वुड बी सरप्राइज, हमने अभी इंडिया का पहला गार्ड ट्रेनिंग सेशन किया. गार्ड एज इन वॉचमैन्स, गार्ड जो होते हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए, बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है. तो वी आस्क्ड अबाउट रेबीज एंड 90% ऑफ देम हैड नो क्लू कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना है. तो आप समझ रहे हो कितना कम अवेयरनेस है. तो मास अवेयरनेस का एक प्लान बना है. इफ द गवर्नमेंट वांट्स, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड. और जो 4-5 साल का मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ ना, 80% सॉल्व होगा, वो तो ABC से पॉपुलेशन ड्रॉप होगा, वो बात अलग है. बट मास अवेयरनेस से 1 साल के अंदर या मैक्सिमम 2 साल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मोर देन 70% सॉल्व हो जाएंगे. Got it. What do you have to say about the Supreme Court judge making a comment like ये जो बच्चे की जिंदगी चली गई है वो कौन ला के देगा वापस. This was a comment made to the activists and the animal lovers that were there कि जो I think कोई बच्चे की डेथ हो गई थी शायद एक डॉग बाइट के कारण. I'm not 100% aware exactly हुआ क्या था, but I think it was a case of a dog bite or some dog attack where the child lost his life. And the judge and the court said that कि आपका डॉग या आपका ये सब काम वो बच्चे की जिंदगी वापस ले आएगा क्या. So I think from looking at it from a very different perspective, I think it's such a hateful comment. You're in the world, you're trying to push more negative than positive. You're trying to मतलब तुमने completely, he's clearly not a pet lover or a animal lover, whoever's passed the decision, but I just feel like the way our Indian authorities, the way that they talk about animals, I don't think it's very sensitive, to be very honest. See, it's because again there is lack of awareness, plus there is lot of hatred जो फैलता है. जो मैंने बोला नेगेटिव मार्केटिंग हमने स्टार्ट में करी ना, तो वो लोगों को दिखता है कि I also get at times irritated with both the parties, okay? एक इधर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक उधर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. क्योंकि और जब प्रॉब्लम होती है तब एवरीवन जस्ट पिक्स अप साइड, ये साइड वो साइड. करेक्ट. नाउ आई डोंट नो अबाउट दिस कमेंट और एनीथिंग विद व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट आई वुड रादर से कि इन सारी चीज़ों को वी आर रियली हैप्पी दैट द कोर्ट इज़ नाउ ओपन एंड दे आर वांटिंग अस टू टॉक अबाउट इट एंड लिसन अबाउट इट. सो आई जस्ट होप कि दिस ब्रिंग्स आउट समथिंग पॉजिटिव, सम पॉजिटिव चेंज, एंड वी कैन एक्चुअली गो टूवर्ड्स लिटरली टूवर्ड्स द डेवलपिंग एस्पेक्ट दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट. कि स्ट्रेज हटा दो तो डेवलप हो जाएंगे. बहुत सारे मुद्दे हैं. सड़क मुद्दा है, गार्बेज मुद्दा है, मुद्दे तो अगर हम मुद्दे निकालने बैठे हैं तो बहुत मुद्दे हैं. करेक्ट. दैट नीड टू बी सॉल्व्ड बिफोर रिमूविंग द डॉग्स. एग्जैक्टली. तो वो अब हमें पता है कि हम कुत्तों को ऐसे तो निकालने नहीं वाले, क्योंकि वो अभी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है. 6.5 करोड़ कुत्ते और ज्यादा ही होंगे, 100%. लेकिन ये जो है ये है ना, ये कहीं जाने नहीं वाले. तो हमें क्या करना है, कैसे हम रिस्पॉन्सिबली, पॉजिटिवली, हेल्दी मैनर में हम करें. बच्चों को वी डोंट वांट एनी चाइल्ड टू डाई आउट ऑफ रेबीज, वी डोंट वांट एनीवन टू गेट बिट, वी डोंट वांट एनीवन टू हैव ट्रॉमास, बट एट द सेम टाइम कैसे
वो कैसे पे अगर हम काम करेंगे ना genuinely with practicality in mind, Yeah. so that would take us to places and we can actually set a very great example to the rest of the world. So we are just hoping now it is in the courtroom, so we are hoping कि Yeah, कुछ let's hope for positive निकले. something Yeah. positive to come Yeah, out so of this, fingers because crossed. yeah, absolutely. We had done a campaign, Akash, just recently, that spoke about No More 50, which was the fine on animal cruelty. I just think that I think 6 महीने पहले या 8 महीने पहले कुछ हमने ये campaign run किया था, No More 50, and the campaign did really well for us, but the idea of the campaign was कि animal cruelty पे 50 रुपए का fine है. This is almost like having no fine and having a green check कि तो आप जो भी करो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एनिमल है, क्या डॉग है या कैट है, जो भी है. We were talking about animal cruelty a couple of months ago. Today we are talking about, are dogs even going to be in that society? So I feel like these are two very poles apart kind of a conversation, and I would wish for the country to be slightly more sensitive towards animals and strays, Yeah. and anything that needs to be done to control population, to control their health, to control rabies, vaccinations. Why aren't we not looking at any solution? We are just looking at problems. Yes. कि प्रॉब्लम है, इसको खत्म कर दो, इसको हटा दो, इसको फेंक दो, इसको साइड में कर दो. आई थिंक दैट एज अ कंट्री एंड एज सच अ बिग इकोनॉमी, वी कांट, आई थिंक इट्स very regressive for us to pick a particular breed up and put it behind bars and be like कि अच्छा तुमने काटा किसी को तो तुम वहीं रहोगे. It's like that one society uncle who has a problem with that one dog. So anyway, so we're just at the closing of our podcast, but I would just love for you to tell a little bit about animal cruelty, anything that you might have seen, anything that you might have come across, and even cruelty that happens in the house. You know how they say domestic violence is domestic in the house. I think a lot of cruelty and a lot of violence on animals also comes from the house. That's not spoken about. True. I would love for you to shed some light on this topic. So बहुत ही डेंजर मुद्दा आपने छेड़ दिया. इसमें देखो, बाकी सारे क्रूअल्टी एस्पेक्ट हमें पता है कि डंडे से किसी ने मारा, किसी ने फ्रस्ट्रेशन निकाला, पेट को मेड ने पीट दिया, उठा के ज़मीन पे पटक दिया. ऑल दिस इज देयर, बट आई एम श्योर अदर पीपल नो अबाउट इट. बट एक ऐसे एस्पेक्ट को मैं छेड़ना चाहूँगा जो शायद लोगों तक नहीं पहुँचती बात, और वो आजकल अभी रिपोर्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, विच इज़ बिस्टैलिटी. सो अगर इजी वर्ड्स में बोलूँ तो रेप ऑन डॉग्स, करेक्ट? Doing sexual abuse with animals, not just dogs. Bestiality is like any other animal that you abuse sexually. अभी ये जो चल रहा था पूरा मुद्दा, so there was a link that was shared amongst all the groups. वो लिंक पे जितने भी क्रूअल्टी हो रहे थे वो डाला जा रहा था. आई एम श्योर उसमें कुछ पुराने वीडियोस भी रहेंगे. ऐसे मोमेंट्स में एग्जैजरेट होती है चीज़ें. बट आई वॉज शॉक टू सी कि ऑलमोस्ट जो भी कुछ 60-70% of the videos had sexual abuse in it. Oh my god. I would, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे इधर दिमाग में वो चल रहा है ना, इतनी घिन आ रही है मेरे को वो चीज़ से. कुछ ब्लर्ड थे, कुछ वैसे ही थे. So a man having sex with the dog, and it is such a, देखो मैं अगर from a behavior point of view बोलूँ तो it is stressful for the dog, but the dog is not going to feel like a human being. वो उस तरह का वायोलेटेड वो एक इंसान की तरह नहीं सोचेगा, फॉर श्योर, यस. बट ये कितना घिनौना एक्ट है, वो डॉग को इतना स्ट्रेस में डाल देता है. द डॉग वुड फील कंप्लीटली अनश्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट. ऑब्वियसली फ्रॉम अ डॉग्स पर्सपेक्टिव थोड़ी कहानी He'll अलग also है, get injured, I guess. बट इमेजिन वी हैड अ लॉ अगेंस्ट इट. जब BNS आया उसके बाद ये डीक्रिमिनलाइज हो गया. बट व्हाई? Even I think the cruelty towards LGBT community या transgender वो भी decriminalize हुआ BNS आने के बाद. I'm not sure, but शायद ये. But यही से शुरू होता है. If you read about criminology and उनके कुछ studies देखोगे तो they say कि जो भी जितने भी we say ना dangerous violent people, psycho killers, psycho abusers, right, who are थोड़ा सा mentally unstable, they move towards all these bigger crimes from animals first. So उसने लाइफ में कभी तो एक जानवर काटा है,
कभी तो एक जानवर को वायलेट किया है बिफोर ही केम एंड ही वायलेटेड अनदर A ह्यूमन human. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनस्लॉटर में मतलब आप फिट ऑफ रेज में आप करते हो, बट दिस इज वेयर द माइंडसेट इज एज सच कि यू आर गोइंग ऑन डूइंग इट आउट ऑफ प्लेजर. Oh God. करेक्ट. सो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को हम डीक्रिमिनलाइज कैसे कर सकते. तो एक पूरा मुद्दा ही है कि दिस हैज टू बी टेकन अप सीरियसली. Yeah. दिस इज नॉट अबाउट एनिमल्स, दिस इज अबाउट द सोसाइटी. Yeah. कि वो जो इंसान है जिसको जो बिंदास ये किए जा रहा है, how dangerous can he be to the society? It is a chance that we are taking, but it's a gamble with people's life. Yeah. If it is not a dog, it's a woman, what will happen next? If he goes on doing it later on, हाँ पकड़ लेंगे. कितने सारे सीरियल किलर्स है जो पकड़े गए, कितने सारे हैं जो पकड़े नहीं गए, लेकिन पकड़ने तक तो डैमेज तो हो गया ना. This is actually the same topic. We also spoke about this with Sudhir sir because he's a cop, so he gets a lot of these cases, and he told us very briefly कि exactly होता क्या है. He called these people abnormal. He said कि ये पागल है, ये लोग abnormal है, they need treatment, they need to be behind the bar, something needs to be done to them, otherwise जैसे आपने बोला, he's like next, this is a dog today, it's a woman tomorrow, it's a man day after, it's going to be somebody, or don't think that कि just because it's an animal he's not going to do anything else. That's just the first step. If you can do it there, you can take it up further, and then so on and so forth. But thank you so much for shedding light on such an important topic. People refrain from speaking about these topics on camera generally, but much needed. Like this, whoever is listening, and if you have the right people that you would want to put this forth, it's very very important. And आई डोंट नो, बट सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस भी आ रहे हैं. हाँ बहुत सारे. इसमें एक और डीपर मुद्दा क्या है कि जब ये सारे मैटर्स होते हैं ना, लॉट ऑफ मेंटालिटी इज इंक्लूडेड इन इट. सो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, देयर बैकग्राउंड्स, देयर पेरेंटेज, जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल डेफिनेटली, बट ये सारी चीज़ें भी आती हैं. उनका अपब्रिंगिंग क्या था. और ये जो बिस्टैलिटी के केसेस होते हैं उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि ये एक ह्यूमन सिस्टम का फेलियर है ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग ऑफ सेक्स एजुकेशन. Also government का भी failure है for not having any laws. जब आदमी को किसी चीज़ का डर ही नहीं, how are you gonna stop them? So law नहीं है उस चीज़ को लेके सही से, उस चीज़ की awareness और education नहीं है ताकि बच्चों को पता हो कि at that stage कि what it is, it's right, it's wrong. अभी हो रहा है obviously, now it is coming up, but this is from that generation ना जो 90s 80s 60s 70s में बच्चे थे, है ना. तो वो we also need to improve how we look towards mental health. And I'm sure India में भी वो improve होगा. Absolutely. But that is something which leads to all of this. Yeah. Correct. Mental health is something definitely we need to work on. Because this is a place where people come from, mental instability. और ये ऐसे acts होते हैं. Yeah. So Sudhir sir rightly call them abnormal in all cases. Akash, thank you so much for coming here and for shedding light on such important topics. We together hope that, you know, जो अभी दिल्ली में जो केस हुआ है वो फिर से रिपीट ना हो, and we hope for a positive outcome, right? You're also working towards it, and we would love for you to send us your book that you have written. You know, whenever we can have it, we would love to kind of share it with our audience, because that is a piece of information that is very very needed in today's day and time. And when, you know, so many households have pets and every building has a pet down, it's very very important for people to know how to treat them correctly and how to deal with them, especially kids also nowadays, you know. So thank you so much for shedding light on these topics that hardly people like to speak about, and we together wish for a safer and a better India for our pets. So thank you so much for coming here. Most welcome, my pleasure, and thank you so much for having me here. It was wonderful. It was our pleasure completely. We've been behind you we since are so forever. sorry we took too much of your time, but I'm sure we spoke a lot about a lot of other Absolutely. things. Anybody that has the slightest interest in pet, I think they can find so much information in this. And any animal lover, feeder, or anybody who has slight inclination towards animals, I think we all need to come together, stand together for, you know, anything wrong that is happening in the current society. It's not wrong, but hopefully we are going to turn for the better. Yeah. Where we all can coexist in harmony. Yeah, absolutely. Coexist in harmony. That's what we aim to do, right? So thank you so much for being here. My and pleasure. We wish for Dog Mantra to do wonders and wonders, and we hopefully soon want to read the book also. Thank you. Thank you so much, Akash.